Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to start the 28th lecture of our geography series and the second lecture of physical geography of India. In the last lecture we discussed about the various physiographic divisions of India, and apart from that we discussed about the formation of the Himalayan mountains as well as the physiographic divisions like the north-south divisions. We discussed about the various ranges of the Himalayan, ranging from the Karakoram ranges of the Trans-Himalayan regions, the Tibetan plateaus, and in between there is a Indus-Sangpo shutter zone between the Trans-Himalaya and the Greater Himalaya. After then we discussed about the Greater Himalayas. Then we discussed about the main central thrust, the valley between the Greater and the Lesser Himalayas. Then after we discussed in detail about the Lesser Himalayas. Then what was there? MBT, main boundary thrust or main boundary fault, whatever you can say. MBT is the valley, the obtuse angle valley, the wide valley between the Lesser Himalayas and the Shivalik. And then we discussed about the Shivalik, the low hills which are still rising, which are still active in its upliftment. And the last was the Himalayan frontal fault. Himalayan frontal fault. So these things are the various, physiographic divisions of the Himalayas. And one thing was left, that was the longitudinal division of Himalayas, like the division of Himalayas from east to westward, right, or west to eastward. So such kind of divisions today we shall discuss. So let's see first what are the components that has to be discussed today. The first is we discuss the longitudinal divisions like the east-west divisions, right. Then we shall discuss about the significance of Himalayas, how Himalayas is significant for us in terms of climatic, in terms of economic, in terms of social, all kind of significance will be taken care of here. Then the physiographic divisions of northern Indian plains, the second physiographic feature of the Indian subcontinent. ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके भी हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स को डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे अरावली माउंटेन रेंजेज. अब हम इसके बाद पेनिनसुलर रीजन्स में आ जाएंगे. पेनिनसुलर रीजन्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से माउंटेन्स प्लेट्यू से पेनिनसुलर रीजन हमारा बना है, कैसे बना है, और उसके जो मेन पॉइंट्स है, मेन जो हिल्स है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. और बाकी एक आपका मैप का क्लास होगा, उस मैप के क्लास में ईच एंड एवरी हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में 4-4, 5-5 लाइन हम डिस्कस कर लेंगे, उसकी हाइट, उसकी पीक, एवरीथिंग, राइट. तो अभी आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो उसके फॉर्मेशंस, उसके फीचर्स, उसका सिग्निफिकेंस के टर्म्स में देखेंगे. और फर्दर जब हम मैप के क्वेश्चंस में करेंगे तो माइन्यूट हिल्स को भी हम देखेंगे, क्योंकि माइन्यूट हिल्स को इन दैट पार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा. दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैपिंग, राइट. तो जैसे विंध्यन रेंज है, उसमें कई सारे रेंज हैं. 1 by 1 इच रेंज को ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अलाइनमेंट कैसा है, ये मैपिंग में हम लोग करेंगे. नॉर्मली हम लोग विंध्यास कैसे बना, कैसा उसकी फीचर्स है, कैसा लगता है, फोल्ड माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में. तो हम अरावली माउंटेन रेंजेस को देखेंगे, फिर वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे, फॉर्मेशंस और फिजियोग्राफी, ईस्टर्न घाट्स को देखेंगे, फॉर्मेशन एंड फिजियोग्राफी, डेक्कन ट्रैप को देखेंगे, फॉर्मेशन एंड फिजियोग्राफी, अदर माउंटेन्स एंड हिल्स को भी देखेंगे, जैसे मेघालय प्लेट्यू हो गया, इसके बारे में देखेंगे. तो ये सारी चीजें जो है हम 1 by 1 देखेंगे. और लास्ट में कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, राइट. तो these are the various topics, these are the various components of this lecture. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय से. लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज यानी ईस्ट वेस्ट डिवीजन. हमने आपको कल बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मेजरली जो है 4 होते हैं, राइट, जो हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं. 5वां जो होता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज, हाउएवर इट इज द पार्ट ऑफ हिमालयन सिस्टम. जब आपको हिमालयन सिस्टम की बात करोगे तो आप उस टाइम के बने हुए सारे फॉर्मेशंस की बात करोगे जो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ये है सेक्टर्स में है, तो उसमें पूर्वांचल हिल्स भी आ जाएगा. लेकिन ये पूर्वांचल हिल्स जो है वो डिस्टिंक्ट होता है जियोलॉजिकली इन कंपैरिजन टू द अदर. इसका जो बना हुआ होता है, टाइम वही है, प्रोसेस वही है, लेकिन जो जियोसिंक्लाइन जिसमें बना है वो अलग है. तो इसलिए ये हिमालय से अलग होता है. इसलिए हम लोग हिमालय जो है अरुणाचल में जो नमचा बड़वा है वहीं तक मानते हैं. नंगा पर्वत से नमचा बड़वा तक 2500 किलोमीटर का जो स्ट्रेच होता है वही एक्चुअल हिमालय है. उसके नीचे आप नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वांचल हिल्स में जाओगे तो दे हैव फॉर्म्ड इन ऑल टुगेदर डिफरेंट जियोसिंक्लाइन, दे हैव नॉट फॉर्म्ड इन टेथियन जियोसिंक्लाइन. समझ में आ रही बात है. तो इसलिए इसको थोड़ा अलग मानते हैं. और ये जो है एक्चुअल डिविजन्स ऑफ द हिमालय होता है. लेकिन आपको ये भी मिल जाएगा क्योंकि सिस्टम वही है दोनों के बनने का. तो पहले पंजाब हिमालय, और ये जो वेरियस सेक्टर्स हैं, जो डिविजन्स हैं,
इसको रिवर रिवर वैलीज के बीच में बांटे गए हैं, और ये जो रिवर है वो कार्व आउट करती है एक वाइड वैली सारे सेक्टर्स के बीच में। तो मेजर जो रिवर्स है इंडस है, सतलज है, काली है, तिस्ता है, ये सब जो बांटे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिवर, और थोड़ी सी फिजियोग्राफिक डिफरेंसेस के बेसिस पे भी बांटे गए हैं। तो इस बेसिस पे, क्योंकि रिवर्स तो कई सारी चल रही हैं, ये पर्टिकुलर रिवर्स को हमने क्यों लिया, तो देयर आर सर्टेन फिजियोग्राफिक डिफरेंसेस विद इन द हिमालयाज, वो है उस बेसिस पे हमने देख लिया है इसको। तो पंजाब हिमालयाज जो होता है इंडस और सतलज का बीच का होता है। अब इंडस और सतलज के बीच में जो है कौन कौन सा हिमालय का पार्ट आता है, आपको इसमें जो है ट्रांस हिमालयन रीजन भी आ जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये सब भी आ जाएंगे। इसके अंदर जो है आपको पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज, ये सब भी आ जाएंगे, राइट। तो जो कश्मीर वाला पार्ट है और कुछ पार्ट हिमाचल वाला है, ये सारे पार्ट जो है इसमें आ जाएंगे पंजाब हिमालयाज में, राइट। फिर हमारा होगा कुमाऊन हिमालयाज। कुमाऊन हिमालयाज का मतलब होता है कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमाचल है और जो उत्तराखंड है वो सब इस कुमाऊन हिमालयाज में आ जाएंगे। ये सतलज और रिवर काली के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो ये कुमाऊन हिमालयाज हो गया। फिर हमारा होगा नेपाल हिमालयाज। इस हिमालयाज का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो इंडिया से बाहर है, क्योंकि आप देखोगे तो नेपाल थोड़ा सा एक नीचे जो है बीच में इंडिया के आ चुका है। तो मोस्ट ऑफ द नेपाल हिमालयाज आर नॉर्थ ऑफ द इंडिया, ठीक है। थोड़े से पार्ट हमारे इंडिया के होंगे इसमें, जैसे सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब पार्ट थोड़े बहुत जो है सिक्किम और दार्जिलिंग जो है इंडिया के पार्ट हुए। अदरवाइज ये पूरा जो है नेपाल के अंदर पड़ता है। ये रिवर काली और रिवर तिस्ता के बीच का एरिया को हम बोलते हैं। फिर हमारा आता है असम हिमालयाज। फिर ये इंडिया में आ जाता है, ये इंडिया का भी पार्ट है, थोड़ा बहुत भूटान का भी इसमें पार्ट है। ये तिस्ता से लेके दिहांग तक का जो एरिया है वो हमारे असम हिमालयाज में आ जाएगा। इसको अरुणाचल हिमालयाज भी बोलते हैं, असम हिमालयाज भी बोल सकते हो, अरुणाचल हिमालयाज भी बोल सकते हो। दिहांग यानी सबसे वो ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में एंटर कर रही है वहां से लेके ये, और पूर्वांचल हिल्स जो है वहां से अब साउथ जितने भी माउंटेन्स हैं, पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर, मिजो, ये सब जो है आपका पूर्वांचल हिल्स में आ जाएंगे। समझ में आ रही है। तो ये सब 5 जो है लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालयन सिस्टम है, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, क्या फिजियोग्राफी है, कैसा फॉर्मेशंस है। ये आप पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो है इंडस रिवर ऐसे निकलती है, सतलज रिवर ऐसे निकलती है। तो इंडस सतलज के बीच में ये पूरा आपका पंजाब हिमालय आ जाता है, राइट। यहाँ काली रिवर निकलती है, तो काली और सतलज के बीच में ये वाला जो रीजन होता है हिमालय का वो पूरा कुमाऊन हिमालय हो जाता है। इधर से तिस्ता रिवर निकलती है, काली और तिस्ता के बीच में ये नेपाल हिमालय आ जाता है। यहाँ इंडिया का ज्यादा पार्ट नहीं है, ज्यादा नेपाल का ही पार्ट है। फिर आपका आ जाता है हमारा ये जो है, और ये इसके बीच असम हिमालय आ जा सकता है। छोटा सा बीच में जो है सिक्किम हिमालयाज भी बोल देते हैं, कोसी तिस्ता के बीच में, क्योंकि ये इंडिया का पोर्शन हो जाता है इसलिए। अदरवाइज सिक्किम हिमालयाज को भी हम जनरली उसी नेपाल हिमालयाज में ही मानते हैं। देखो यहाँ पे ना जो डिविजन्स हैं वो 2 थॉट से बने हैं। एक तो कि हम इंडिया की बात करने लगते हैं, तो इंडिया की जब भी बात करने लगते हैं तो ये नेपाल हिमालयाज को इग्नोर करते हैं, इसको इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, जो हमारे इंडियन जो मॉर्फोलॉजिस्ट ने किया है, ठीक। क्योंकि हम जब इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो दिस इज नेपाल हिमालयाज इज इनसिग्निफिकेंट टू अस, रादर दिस सिक्किम हिमालयाज इज सिग्निफिकेंट टू अस। इसलिए एनसीईआरटी में आप देखोगे तो नेपाल हिमालयाज की जगह ये सिक्किम हिमालयाज दिया होगा, जिसमें आपको दार्जिलिंग और इसकी बात करोगे। लेकिन आप जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो यू शुड कंसीडर, आप हिमालयाज पढ़ रहे हो, एक्चुअली आप इंडियन यहाँ नहीं पढ़ रहे हो। जिस हिमालयाज का जो पार्ट है वो हमारा इंडियन भी बात करेंगे और हम नेपाल की भी बात करेंगे। तो आप जब भी आंसर लिखना तो हिमालयाज का अगर फिजियोग्राफी डिवीजन लिखे तो यू मस्ट कंसीडर इट नेपाल हिमालयाज, राइट। क्योंकि बिकॉज ज्योग्राफी डज नॉट हैव ये, समझ रहे हो ना, जब ये आप एयर मास पढ़ रहे हो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में तो सोमालिया हर जगह से उठ के आ रहा है, वहां भी तो आप पढ़ रहे हो। तो यही चीज है। और बाकी फिर हमारा ये असम हिमालय होगा, ये दिहांग रिवर है जो इंडिया में एंटर करती है, और इसके बाद वाला जो ये वाला पोर्शन है दिस इज पूर्वांचल हिल्स। समझ में आ रही बात है। तो ये जो है फिजियोग्राफी, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया। तो देखो 1 बाय 1 जो है इसको इस पिक्चर से भी देख सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं एक से एक के बाद एक। पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज इंक्लूड्स द एरियाज ऑफ कश्मीर, द रीजन्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पूरा, लद्दाख वाला रीजन जो ट्रांस हिमालयन रीजन है वो सब, और थोड़ा इसकी भी बात करते हैं हिमाचल की भी। ये जो है 580 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है, ठीक है। यहां जो है आपको काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल, ये चारों माउंटेन रेंजेस आपको मिलेंगे। वैसे ग्रेटर हिमालयाज भी है इन बिटवीन, बट ये जो जस्कर है और ग्रेटर हिमालयाज है यहां पे इनसेपरेबल लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। मतलब इनके बीच की जो वैली है वो इतनी नैरो है कि दे लुक अलाइक, जैसे कि एक ही माउंटेन हो। तो आपको काराकोरम से लेके लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ये सारे माउंटेन्स जो हैं ये इसके अंदर आते हैं। और इसके जो माउंटेन्स हैं इसका नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट अलाइनमेंट है। माउंटेन्स यानी ऐसे हैं, इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट।
तो इस डायरेक्शन में सारे माउंटेन्स ऐसे मिलेंगे। फिर आप नेपाल हिमालय जब बीच में जाओगे तो आपको ईस्ट वेस्ट मिलेंगे। फिर असम में जाओगे आप तो आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मिलेंगे। तो इस तरह से फिर आप पूर्वांचल में जाओगे तो नॉर्थ साउथ मिलेंगे। तो हिमालयाज के ऐसे अलाइनमेंट्स अलग अलग हैं, समझ में आ रही बात है। तो इसके जो अलाइनमेंट हो गए वो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट अलाइनमेंट के सारे माउंटेन्स है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ दिस रीजन हैज कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपको मिलेगा कौन सा कोल्ड डेजर्ट वाला? लद्दाख वाला। तो इस रीजन का आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखोगे, अब इसको पिक्चर से आपको देखो समझ में आएगा। ये वाला इसका जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, इसका नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो ये पूरा आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, आपको लद्दाख वगैरह सब कुछ मिलेंगे, क्योंकि जो हिमालय है ये ऊपर जाने नहीं देता है मानसून को, तो इसकी वजह से ये पूरा कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। इनफैक्ट पूरा ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जस्कर सब आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। यहाँ माउंटेन सब ऐसे हैं, ये जो है काराकोरम माउंटेन है, ठीक है, ये आपको लद्दाख माउंटेन है, ये आपको जस्कर है, और जस्कर यहाँ ये तिब्बतन प्लेटू है, ये रीजन तिब्बतन प्लेटू का है। जस्कर इस पे चला जाएगा तो ये कैलाश माउंटेन कहलाएगा, राइट। तो ये माउंटेन है, और यहाँ से फिर हमारा ग्रेटर हिमालय शुरू होता है, फिर यहाँ से हमारा पीर पंजाल शुरू होता है। तो ये लाइन से ये माउंटेन है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल, राइट। ये जस्कर ग्रेटर हिमालय बिल्कुल चिपके हुए हैं, ठीक। ये जो लद्दाख और जस्कर के बीच जो है इंडस रिवर चलती है, आपको पता है ये इंडस सांगपो सटर जोन है, ये ऐसे 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 इधर से इंडस रिवर जाती है, और इधर से हमारा ब्रह्मपुत्रा सांगपो जाती है, यहां से दिहांग है, और यहां से ये ब्रह्मपुत्रा बन जाती है नीचे आके, समझ में आ रही बात है। तो ये जो है हमारा ऐसा पूरा अलाइनमेंट में सारे माउंटेन्स यहाँ पे होते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसका नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख, लेह, ये सारी चीजें यही आती हैं, समझ में आ रही बात है। तो ये हो गया आपको। अब इसके फीचर्स, आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है यहाँ पे, जैसे बाल्टोरो, सियाचिन, ये सब जो है इसी सेक्टर में है, आपको खासकर इसके ऊपर काराकोरम रेंज के पास। तो जितने भी बाल्टोरो, सियाचिन आप देखते हो सब ये ग्लेशियर्स हैं, राइट, माउंटेनियर ग्लेशियर्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो हमारा कश्मीर वैली है, जो झेलम रिवर द्वारा ड्रेन्ड होता है। ये कश्मीर वैली जो है वो किस तरह की वैली है, कौन से फॉल्ट लाइन पे है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट पे है कश्मीर वैली, राइट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट इज नैरो वैली, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आप जान रहे हो, वहां पे है कश्मीर वैली, ग्रेटर हिमालयस लेसर हिमालयस के बीच में, राइट। तो ये जो कश्मीर वैली है वो झेलम रिवर द्वारा यहाँ डीप लेक्यूस्टाइन डिपोजिट्स होता है। लेक्यूस्टाइन डिपोजिट्स हमने बताया आपको, ठीक है। जो माउंटेन जो लेसर हिमालयस बन गया तो रिवर्स को रोक दिया, वहां रिवर रुक गई एक लेक की तरह, सारे अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पे डंप कर दी, और धीरे 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 काटती रही, और काट के फिर निकल गई। तो जितना जो डंप की वो सारे सेडिमेंट्स, वो पूरा एक डिपोजिट्स बन के प्लेन बन गया और हाईली फर्टाइल बन गया, राइट। तो उससे क्या बन गया? कड़ेवा सॉइल बन गया। कड़ेवा सॉइल जो है ह्यूमस और किसके? कैल्शियम रिच होता है, इसलिए वेरी फर्टाइल सॉइल होता है। जैफरन कल्टीवेशन के लिए होता है, जैफरन इज अ लोकल क्वालिटी ऑफ सैफरन, ठीक है, वहां यह होता है। राइस की भी कल्टीवेशन होती है। अब ये सदर्न पार्ट जो इसका है, नीचे वाला पार्ट, वहां पे दून फॉर्मेशन है। अब दून कहां बनेगा? शिवालिक और लेसर हिमालयस के बीच में बनेगा। वो कौन से फॉल्ट पे बनेगा? एमबीटी, मेन बाउंड्री फॉल्ट पे बनेगा, एमबीएफ या एमबीटी। अब ये जो होता है वाइड वैलीज होती हैं, ये वाइड वैलीज होती हैं क्योंकि एमबीटी जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल फॉल्ट लाइन होता है। तो यहां पे दून लाइक फॉर्मेशन बनेगा, और इसमें जो इस साइड में दून देखोगे तो आपको जम्मू दून दिखेगा, पठानकोट दून दिखेगा, ये सारे दून फॉर्मेशंस हैं। मतलब ये जो है पूरा लार्ज एरिया में स्ट्रेच जो है वैलीज हैं, वो नैरो वैलीज कश्मीर की तरह नहीं है। देहरादून इसमें नहीं आएगा, देहरादून कुमाऊं में आ जाएगा, ईस्ट साइड में, समझ में आ रही बात है। तो ये सब आपकी ये हो जाएंगी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी है यहाँ पे, जैसे जोजिला पास है। जोजिला पास ग्रेटर हिमालयस पे है, किसको किसको कनेक्ट करता है? ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, श्रीनगर और लद्दाख को वही कनेक्ट करता है जोजिला पास। उसी तरह से बनिहाल पास है, बनिहाल पास जो है पीर पंजाल पे है, वो किसको किसको कनेक्ट करता है? जम्मू और कश्मीर को, यानी श्रीनगर और जम्मू को। तो ये बनिहाल पास करता है। फिर फोटुला पास है जस्कर पे, खरदुंगला पास है लद्दाख पे। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हुआ करते थे एंशिएंट टाइम में, अभी भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। रेनफॉल यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर होता है, बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि ठंडा के दिन में यहाँ पे मेनली स्नोफॉल होता है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मॉनसून के टाइम में थोड़े बहुत रेनफॉल होता है, लेकिन वो भी ग्रेटर हिमालयस के इस साइड, नॉट दैट साइड। अपर साइड में चले जाओ तो 10-15 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, जो ट्रांस हिमालयन रीजन में है। लेकिन जो इधर है हमारे लेसर हिमालय, शिवालिक, वहां आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको कॉनिफेरस वेजिटेशन मिलेंगे, चीड़, देवदार, इन सब के मिलेंगे आपको, राइट।
और वहां पे आपको ना ग्रास मिलेंगे, अल्पाइन ग्रासेस, ग्रासलैंड्स मिलेगा वैली के दोनों साइड स्लोप्स पे, खासकर कश्मीर के दोनों साइड देखोगे आप, ग्रेटर हिमालय साइड में और लेसर हिमालय साइड में, तो अल्पाइन ग्रास होता है जिसको वहां पे मर्ग्स बोलते हैं, मर्ग्स। तो ये सब यहाँ पे मिलते हैं। गुजर्स एंड बकरवाल्स यहाँ ट्राइब्स होते हैं जो ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है? अपने हर्ड्स के साथ शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं पे भी खाते पीते हैं वहां के रिसोर्स को, फिर कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये घूमते घूमते ट्राइब्स जो होते हैं ट्रांस ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है। कई बार ये लोग गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं और वहां जाके अपना खेती वेती करते, जो अपना काम करते हैं लाइव स्टॉक का, ठंडियों में नीचे आ जाते हैं। तो सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर देयर, जो गुर्जर्स एंड बकरवाल्स ट्राइब्स वहां पे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंजाब हिमालयास, क्लियर रहेगा। दूसरा है आपका कुमायूं हिमालयास। कुमायूं हिमालयास जो है मेनली उत्तराखंड का होता है एंड सम पार्ट ऑफ द हिमाचल ऑल्सो, राइट। ये 320 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होता है और ये सतलज और काली के बीच में होता है। सतलज रिवर इन द वेस्ट, काली रिवर इन द ईस्ट। इट स्ट्रेचेस फॉर 320 किलोमीटर। यहाँ 3 माउंटेन रेंजेस जो है प्रोमिनेंट है, वहां भी प्रोमिनेंट थे, वहां भी ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास, शिवालिक, तीनों अलग अलग दिखेगा पंजाब हिमालयास में। यहां भी तीनों अलग अलग दिखेंगे, राइट। तो यहां जो अगर मेन देखोगे कि कौन कौन से रेंजेज हैं, जो कि लेसर हिमालयास के, आपको पता है कि ग्रेटर हिमालयास तो एक रेंज है, लेसर हिमालयास अलग अलग है। तो लेसर हिमालयास के वहां था पीर पंजाल, यहां कुछ पार्ट ऑफ धौलाधर भी आपको मिलेगा और ज्यादातर आपको मसूरी रेंज मिलेगा, नाग टिब्बा रेंज मिलेगा, ये सब यहां मिलेगा। समझ में आ रही बात है? सब डाइसेक्टेड जो माउंटेन्स हैं, डिटैच्ड माउंटेन्स। ग्रेटर हिमालयास का बहुत सारे पिक्स हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, या ग्लेशियर्स मिलेंगे आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, ये सब आपको मिलेंगे। बहुत सारे यहाँ पे आपको कॉन्फ्लुएंस मिलेंगे। हम लोग रिवर सिस्टम में बात करेंगे सारे कॉन्फ्लुएंसेस की, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब सारे जो है रिवर्स के कॉन्फ्लुएंसेस हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो आपको मिलेंगे, अलकनंदा जो है सब में जो है कॉमन है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको इसी रीजन में कुमाऊं हिमालयाज में मिलेंगे, राइट। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये जो है मेनली फेमस किस चीज के लिए है? तो पिलग्रिमेज के लिए फेमस है। यहां देखोगे तो लोग जो है तीर्थ स्थान के लिए सारे फेमस है, कई सारे धाम है, सारे सर्किट जो होंगे आपको, टूरिस्ट सर्किट, यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म ज्यादा है यहाँ पे। वहां पे भी थोड़े बहुत रिलीजियस टूरिज्म है, जैसे आपको वहां पे अमरनाथ है, वैष्णो देवी है, ये सब रिलीजियस टूरिज्म पंजाब हिमालयाज में है। मगर ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म यहाँ है, वहां जो है वो घूमने वाला वो डेस्टिनेशन है, इंजॉय हिल स्टेशन वाला, राइट। तो ये सारी चीजें जो है, बट मोर सो मेनी हिल स्टेशन आर देयर ऑल्सो, लाइक मसूरी, नैनीताल। बहुत सारे यहाँ पे आपको ये भी मिलेंगे, लेक्स भी मिलेंगे, नैनीताल, भीमताल, ये सब आपको ग्लेशियल लेक्स मिलेंगे यहाँ पे, राइट। सेवरल वाइड दून वैलीज यहाँ पे मिलेगा, राइट। जैसे देहरादून हो गया, हरिके दून हो गया, कालका दून हो गया, ये सब जो है इस रीजन में मिलेंगे। बहुत सारे लेक्स मिलेंगे, ये सब ग्लेशियल लेक्स हैं, नैनीताल, भीमताल, ये सब। फ्लड प्रोन रीजन होता है ये, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट यहाँ बहुत ज्यादा होता है, लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ का जो ये माउंटेन है, खासकर लेसर हिमालय, जो काफी फ्रेजाइल है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल देयर इज लैंडस्लाइड एंड क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर वाले इसमें, लेक्चर 32 में। टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर जो है मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इन रीजन का, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर। टूरिज्म में मेनली जो है रिलीजियस टूरिज्म, और हॉर्टिकल्चर यानी फलों का उत्पादन, राइट, ये सब यहां ज्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं नेपाल हिमालयास की। नेपाल हिमालयास जो है सबसे एक्सटेंसिव है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, 850 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट है रीजनल डिवीजन जो है, राइट। ये काली और रिवर तिस्ता के बीच में है, काली एंड रिवर तिस्ता। टेक्टोनिकली ये ज्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ ना बहुत सारे वाइड दून वैलीज हैं, जैसे कि लोकेटेड लाइक देहरादून, हरिके दून, कालका दून, ये सब जो है ऑब्ट्यूज वैलीज हैं, राइट। किसके किसके बीच होंगे ये? लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में होंगे, राइट। क्योंकि इस रीजन में आते आते ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में थोड़ा सा जो है वो ये हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक दूसरे से कोलैप्स हो, क्योंकि आप जाओगे आगे जाके देखोगे तो नेपाल हिमालयाज में फिर जो है अभी वो वाइड है, जिसपे कि काठमांडू वैलीज है। इस रीजन में भी है, कांगड़ा वैली है, मनाली वैली है, ये सब जो है इधर ही है, ठीक है, ग्रेटर और लेसर हिमालयाज के बीच में। लेकिन लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में सब दून फॉर्मेशन होगा, जैसे देहरादून हो गया, हरिके दून हो गया, कालका दून हो गया। बहुत सारे लेक्स आपको मिलेंगे, ग्लेशियल लेक्स खासकर, जिसमें कि आपको नैनीताल, भीमताल, ये सारी चीजें होंगी। फिर आपको फ्लड प्रोन रीजन ये होता है, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट होते हैं। टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर यहाँ पर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब हम बात करते हैं नेपाल हिमालयास की, काली और रिवर तिस्ता की। सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, 850 किलोमीटर लॉन्ग। टेक्टोनिकली मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स,
लेकिन 2015 में यहां भी एक मैसिव अर्थक्वेक आ गया। टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिमालयाज, आपको पता है कि जो सेंट्रल हिमालयाज है सबसे टॉलेस्ट है, राइट। और इसमें जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स जो है आपको यहां मिलेंगे, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब जो है इसी रीजन में है। माउंटेन्स का यहाँ ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट है, ऐसे है माउंटेन्स यहाँ पे, इस तरह से आके हमारा हिमालय आता है, यही है हिमालय का स्ट्रक्चर। तो यहाँ वाला जो रीजन में है वो ईस्ट वेस्ट आपको मिलेगा, राइट। तो दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ द माउंटेन रेंज हियर। यहाँ आपको जो मिलेंगे वैलीज, वो मेनली काठमांडू वैली आपको मिलेगा बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज। तो ये मेन यहाँ का ये है। अब बात करते हैं हम असम हिमालयाज का। ये चूंकि इंडिया का पार्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमें इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ कौन से हिल स्टेशन है, क्या है, नहीं है, ठीक है। असम हिमालयाज में बिटवीन रिवर तिस्ता एंड दिहांग, तिस्ता से लेके ईस्ट साइड में दिहांग तक होता है। ये स्टिप स्लोप्ड ग्रेटर हिमालयाज, यहाँ ग्रेटर हिमालयाज बिल्कुल स्टिप स्लोप्ड हो जाता है। और यहाँ पे लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में कोई गैप नहीं रह जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं। लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक आर इंसेपरेबल, राइट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अलाइनमेंट इसका होगा, इस तरह का ये हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत जो लेसर हिमालयाज है वो डाइसेक्टेड फॉर्म में होगा यहाँ पे, राइट। बहुत सारे डाइसेक्टेड छोटे छोटे माउंटेन्स होंगे, जैसे डफला हिल्स, मिसमी, मीरी, अबोर, ये सब जो होता है, डफला, मिसमी, अबोर, मीरी, ये सारे लेसर हिमालयाज के पार्ट हैं जो टूटे 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 हुए इस रीजन में है, राइट। ये हेवी रेनफॉल वाला रीजन है। आप रेनफॉल क्लाइमेट में बताएंगे कि ये 200 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ होता है। क्यों होता है 200 सेंटीमीटर रेनफॉल? इधर जो है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मॉनसून जाता है वो उधर जाता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से मेनली वहां पे 200 सेंटीमीटर से हेवी रेनफॉल होता है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र और इसके ट्रिब्यूटरीज द्वारा ड्रेन्ड होता है। ये पूरे रीजन्स देखोगे तो ब्रह्मपुत्र या उसके ट्रिब्यूटरीज पूरे रीजन्स में फैले हुए हैं। मेन जो यहाँ ड्रेनेज बेसिन है वो ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज बेसिन है। यहाँ फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक या अदर इन्वायरमेंटल हजार्ड्स बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसका कारण है हेवी रेनफॉल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हेवी रेनफॉल की वजह से जो रॉक्स होते हैं वो बिल्कुल स्लिपरी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। लैंडस्लाइड्स होने की वजह से भी कई बार फ्लडिंग हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द रिवर कोर्स। उसके बाद यहाँ जो माउंटेन्स हैं, खासकर लेसर हिमालयाज, दे आर वेरी फ्रेजाइल, राइट, कॉन्ग्लोमरेट काइंड ऑफ। तो जो भी रिवर्स जाती है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोजनल जो सेडिमेंट्स है वो लेके आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर्स होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र खासकर ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स ब्रह्मपुत्र की यहाँ होती है, जिसकी वजह से ये फ्लडिंग बहुत ज्यादा होता है। अर्थक्वेक रीजन तो पता ही है, ये जो है वो फ्रंटल फॉल्ट सब यहाँ पे एक्टिव है, तो इसलिए अर्थक्वेक रीजन तो पूरे हिमालय में ही खैर इनफैक्ट है। तो ये सब सबसे कॉमन होता है, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स खासकर सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉमन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना असम हिमालयाज के बारे में। ये हो गया, आपको असम हिमालयाज का पिक्चर देख सकते हो आप। ये सब जो हिमालयाज का ये वाला पार्ट है, ये असम हिमालयाज है। यहाँ रिवर तिस्ता है, यहाँ रिवर दिहांग है। इसमें आपको डफला है, मीरी है, अबोर है, मिसमी है, ये सब माउंटेन्स हैं। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सब जो है लेसर हिमालयाज के माउंटेन्स हैं। ग्रेटर हिमालयाज स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट जाके आगे जाके नमचा बड़वा है, जहां पे कि खत्म हो जाता है ग्रेटर हिमालयाज। और लेसर हिमालयाज शिवालिक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी शिवालिक डज नॉट हैव इट्स सेपरेट आइडेंटिटी इन दिस रीजन्स। ये जो है मान लेते हैं हम कि शिवालिक जो है और दोनों मिल गए। इनफैक्ट बहुत लोग मानते हैं कि नेपाल हिमालयाज पे आकर शिवालिक खत्म हो जाती है, बट एक्चुअली हम लोग ये चीज नहीं मानते हैं कि टेक्टोनिकली ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। तो इस वजह से जो है हम मानते हैं कि दोनों के बीच में गैप नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया है। तो डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सब हो जाएंगे आपको, राइट। ये सारे माउंटेन्स लाइन से आपको अरेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका असम हिमालयाज। फिर हम बात करेंगे पूर्वांचल हिल्स के। पूर्वांचल हिल्स की बात करेंगे तो आपको यहां से जो माउंटेन्स आ रहा है ये पूर्वांचल हिल्स हो जाएंगे। पटकाई बूम वाला एरिया जो है, नागा हिल्स वाला जो एरिया है, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, इधर ब्रायल रेंज है, ये सारे जो हैं वो पूर्वांचल हिल्स के पार्ट हो जाते हैं। यहाँ के आप माउंटेन्स को देखोगे तो आपको ईस्ट वेस्ट जो है अलाइनमेंट होंगे, सॉरी नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नहीं, नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट होंगे, राइट। और ये वाले जो रीजन्स हैं, इनके जो माउंटेन्स हैं वो जनरली ये सारे माउंटेन्स से काफी छोटे होते हैं। देयर हाइट, देयर रिलीफ इज क्वाइट लो इन कंपेरिजन टू द हिमालयन सिस्टम। ये जो बना हुआ है यहाँ पे एक बर्मिस जियोसिंक्लाइन हुआ करता था, जैसे तेथियन जियोसिंक्लाइन था 33 से, तो एक छोटा सा जियोसिंक्लाइन बर्मिस जियोसिंक्लाइन यहां हुआ करता था, बर्मिस जियोसिंक्लाइन। तो उसमें सेडिमेंटेशन और उसके कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन और अपलिफ्टमेंट की वजह से ये सारे माउंटेन्स बने हैं। और ये सारे माउंटेन्स के बीच में रिवर्स हैं जो कि वाइड वैली कार्व्ड करके यहाँ पे इनको रख दिए हैं, जिसकी वजह से ये माउंटेन्स सारे अलग अलग हो गए। यही आप जो हमारा मिजो हिल्स है, इससे और नीचे जाओगे म्यांमार में तो आपको एक अराकान योमा करके माउंटेन आएगा। दैट अराकान योमा इज द पार्ट ऑफ द सेम फॉर्मेशन। इनफैक्ट और नीचे जाओगे तो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाएगा। ये
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी इसी फॉर्मेशन का पार्ट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वोल्केनिक आइलैंड नहीं है, कोरल आइलैंड नहीं है, वो नीचे का जो जमीन है वो फोल्ड होकर ऊपर आ गया है और उसकी वजह से ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बन गया है। तो दिस इज इन द सेम फॉर्मेशन, सेम जियोसिंक्लाइन का ये पार्ट रहा है नीचे तक, अंडमान निकोबार तक। अंडमान एंड निकोबार को हम कंटिनेंटल आइलैंड इसलिए बोलते हैं, राइट। तो ये पूरा सेम फॉर्मेशन है जो कि हिमालयन फॉर्मेशन का ही पार्ट है। सेम टाइम ये सारी चीजें हुई थी, बट हिमालयस का पार्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज द तेथियन जियोसिंक्लाइन, दिस इज बर्मिस जियोसिंक्लाइन। क्लियर है? ये भी हेवी रेनफॉल वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हेवी रेनफॉल है। मॉनसून में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि इन सब रीजन में क्यों हेवी रेनफॉल होता है। यहाँ जो अराकान योमा है, ये माउंटेन बहुत हेल्पफुल होता है मॉनसून के लिए, क्योंकि ये क्या करता है कि इससे हमारा मॉनसून विंड्स टकराता है और इंडिया की तरफ चैनलाइज कर देता है। तो इंडिया में जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रहा है और हेवी रेनफॉल कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, असम हिमालय में, बिकॉज ऑफ दिस अराकान योमा माउंटेन एंड दीज रीजन्स। तो दीज आर द रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल, राइट। इसकी वजह से यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। आपको यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट्स है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं, डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स हैं, नागा, कुकी, ये सब जो है इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, इंसर्जेंसीज बहुत ज्यादा है। पटकाई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारे जो है ब्रायल रेंज, दीज आर द पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। पूर्वांचल हिल्स में जियोलॉजिकली फॉर्म्ड इन बर्मिस जियोसिंक्लाइन ड्यूरिंग द हिमालयन ओरिजिन, डाइसेक्टेड माउंटेन्स है यहाँ पे, सब रिवर्स ने डाइसेक्ट कर दिया है। हिल्स हैव नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट, अराकान योमा, अंडमान निकोबार इसका एक्सटेंशन है। ये ट्राइबल कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ट्राइब्स जो है जो झूम कल्टीवेशन को ज्यादातर ये लोग करते हैं, यहाँ पे प्रमोट करते हैं। इनहेबिटेड बाय 200 सेंटीमीटर रेनफॉल विद सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन ये क्या होता है इंडिया में, जब हम बात करेंगे वेजिटेशन के तो वन बाय वन हम बात करेंगे। एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट, डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, ये सब जो है। हाईली सेंसिटिव टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स, ये सब रीजन्स भी बहुत अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, राइट। दे आर एक्टिव फॉल्ट लाइन्स यहाँ भी हैं। आप अर्थक्वेक के जोनेशन में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 31 32 में, तो उसमें आप देखोगे ये सब रीजन्स जो है ना वो हाई मतलब रिस्क जोन में आता है, वेरी हाई रिस्क जोन में ये सारे रीजन्स आते हैं। और अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड्स भी होते हैं और रेनफॉल की वजह से भी यहाँ लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो दिस रीजन्स आर जियोलॉजिकली वेरी अनस्टेबल। तो ये सब आपको हिमालय का डिविजन्स आप समझ गए। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज के सिग्निफिकेंस क्या है, हाउ हिमालयाज इज सिग्निफिकेंट टू अस। देखो, हिमालय के सिग्निफिकेंस की जब भी बात करोगे तो जनरली लोग जो है क्लाइमेट रिलेटेड बात करके रह जाते हैं कि मॉनसून विंड्स के लिए ये हमारे हेल्पफुल होता है, हमारे वो कोल्ड विंड्स को रोकता है, साइबेरियन कोल्ड विंड्स को। बट हिमालय का सिग्निफिकेंस केवल वहीं तक नहीं रह जाता है, वो दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज। जब हिमालय सिग्निफिकेंस की बात करोगे तो उसके जियोमॉर्फिक पोर्शंस की बात करोगे, उसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करोगे, उसके आप ड्रेनेज सिग्निफिकेंस की बात करोगे, हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करोगे, क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस की तो बात करोगे ही, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे बात करनी है। तो हिमालय के सिग्निफिकेंस को आप बांट दो 3-4 भागों में। सबसे पहले आप क्या बांटोगे, क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस। क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस। फिर आप बांटोगे हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। फिर आप बात करोगे इसका सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक। जब हम सोशियो इकोनॉमिक बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेवरेज होता है सोशल और इकोनॉमिक दोनों को मिला देने के लिए, तो ये एक ब्रॉड एरिया हो जाता है सोशियो इकोनॉमिक। क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस में आप क्या क्या बांट सकते हो इसको, मॉनसून विंड्स जो आती है इंडिया में, हाँ, तो वो एक क्या करती है कि बैरियर का काम करती है। मॉनसून विंड्स जो है इंडिया को क्रॉस करके आप चाइना में ना चला जाए इसलिए। तो मॉनसून विंड देखोगे तो आएगी तो हिमालय से टकराते हुए सबको जो है रेनफॉल देते हुए लाइन से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में और पंजाब रीजन्स में देते हुए जाती है। तो ये सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस है, इट ब्लॉक्स द मॉनसून विंड्स एंड दैट मॉनसून विंड्स इज फेवरेबल फॉर द ऑल द मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑल द एक्टिविटीज इन इंडिया, राइट। तो ये पहला होता है। दूसरा होता है कि ये एक बैरियर का काम करती है अगेंस्ट द इनकमिंग साइबेरियन कोल्ड वेव्स। साइबेरियन कोल्ड वेव्स एक उधर से चलता है जो कि हिमालय जो है उसको रोक देती है। उधर साइड आप जाओगे तो गोबी डेजर्ट है, टकला मकान डेजर्ट है, दीज आर द कोल्ड डेजर्ट बिकॉज ऑफ सच साइबेरियन विंड्स एंड ऑल थिंग्स। अब वो जो है हिमालय के पास आके रुक जाता है और इंडिया में नहीं इंटर करता है। अगर हिमालय यहां नहीं होता तो जो इंडिया होता दैट कुड बी अ डेजर्ट कंडीशन,
एक तो कि रेनफॉल नहीं होती मॉनसून की वजह से, दूसरी चीजें हैं कि उधर से कोल्ड विंड्स भी आती, तो एक तरह के कूल डेजर्ट बन जाता पूरा कंट्री हमारा, तो उस टर्म्स में भी वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जो ठंडी के दिनों में ड्यूरिंग विंटर मेडिटेरेनियन सी में एक टेम्परेट साइक्लोन बनता है, उस टेम्परेट साइक्लोन को सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ड्रैग करके लाता है वेस्ट टू ईस्ट। वो जैसे हिमालय के पास पहुंचता है वो बाइफर्केट हो जाता है हिमालयाज की वजह से, हिमालयाज एंड तिब्बतन प्लेटू दोनों मिलकर इसको बाइफर्केट कर देते हैं, जेट स्ट्रीम को बाइफर्केट करते हैं, तो वन लिम्ब ऑफ दैट बाइफर्केशन फॉल्स ओवर द रीजन साउथ ऑफ हिमालयाज। हिमालय के साउथ मतलब इंडिया साइड में एक लिम्ब पड़ता है, तो जो टेम्परेट साइक्लोन है वो इंडिया में चैनलाइज हो जाता है, और उसकी वजह से ठंडी के दिन में जो भी बारिश आपका होता है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, अप टू पटना, ये सब जितने भी बारिश होते हैं, रेनफॉल होता है, ये सारे जो है उसी टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होता है। और इसी विंटर रेनफॉल की वजह से ये पूरा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिहार सब व्हीट बेल्ट है, मेनली पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। जितना व्हीट कल्टीवेशन, रावी कल्टीवेशन आप देखते हो, माइल्ड रेनफॉल उसके लिए चाहिए, ये वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देता है, तो इसकी वजह से ये हो गया। फिर उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से स्नोफॉल भी होता है, स्नोफॉल होता है तो रिवर्स को पानी मिलती है इवन ड्यूरिंग समर, इसलिए हिमालयन रिवर्स जो है पेरेनियल होती हैं, सालों भर फ्लो कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे हिमालय का आपको दिख रहा है। अब हिमालय के आपको क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस में ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, हिमालय के क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस में। फिर हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये जो है एक मेजर सोर्स ऑफ रिवर्स है इंडिया में, मोस्ट ऑफ द रिवर्स का मेजर सोर्स ऑफ हिमालयन रीजन है। आप गंगा को ले लो, यमुना को ले लो, ये सारे रीजन्स जो है हिमालयन रीजन्स में ही ओरिजिनेट होती हैं, इंदस नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं, क्योंकि ये सब जो है उस पार है, राइट, ये सब जो है तिब्बतन प्लेटू पे है, लेकिन गंगा, यमुना, ये सब जो है सब हिमालय पे आप ये करती हैं, ये इंडिया में ही ओरिजिनेट होती हैं। तो ये जो है हिमालयन रीजन्स इज अ वाटर शेड, ए काइंड ऑफ, ये कैचमेंट एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द रिवर्स, जहां पानी सब कलेक्ट होके और फिर इंडिया में आती है। तो अलकनंदा, भागीरथी, जितनी ये सब रिवर्स हैं, मंदाकिनी, सब जो है इसी रीजन से आती हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब चीजें, तो ये सब जो है हिमालय देता है। इसके अलावा जो यहाँ का आइस कैप्स है, जो आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, दे आर फीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द रिवर्स इन द समर सीजन। तो पेरेनियलिटी जो रिवर्स की है हिमालयन रीजन्स में, दिस इज बिकॉज ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। तो ये सब भी रीजन्स है, समझ में आ रही बात है। तो ये आपको हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा। सो मेनी लेक्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे लेक्स हैं, इंटरमोंटेन लेक्स हैं, ग्लेशियल लेक्स हैं, ये लोग जो है वाटर प्रोवाइड करते हैं पूरे रीजन को, तो ये भी एक हिमालयन का रीजन का है, ये है। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस देखोगे आप लेटर ऑन, इसके बाद एक इसकी और सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हो इसको जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस या जियो हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस ये अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये सब जो होते हैं वो जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस में आ जाएंगे। एक्चुअली ये एक तरह का निगेटिव सिग्निफिकेंस हो गया कि हमारे लिए एक डिजास्टर प्रोन रीजन भी है, जहां की अर्थक्वेक आता रहेगा, आपको लैंडस्लाइड्स आती रहेगी, डिजास्टर्स आते रहेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें भी इसके सिग्निफिकेंस में डाल देना। सिग्निफिकेंस की जब भी बात करोगे ना, तो याद रखना हमेशा सिग्निफिकेंस और मेरिट्स में फर्क होता है। मेरिट इज नॉट द सिग्निफिकेंस। जब भी सिग्निफिकेंस की बात करोगे तो उसकी दोनों की बात करोगे कि किससे हमको खतरा भी है, ये किस तरह से हमें एक मतलब डिजास्टर प्रोन भी रीजन देता है। तो अगर किसी चीज से हमको खतरा है, वो भी उसकी सिग्निफिकेंस हो गई। तो अगर यहां पे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स ये सब आता है, दैट कुड बी अंडर द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज, अंडर द जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस, और यू कैन से द जियो हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। रिवर्स के बारे में बात कर दोगे, सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अब बात करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करोगे तो आप सबसे पहले क्या फायदे क्या घाटे इसकी वजह से है, राइट। ये जो है हमको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन देता है इंडिया में, तो टूरिज्म के लिए ये बहुत फेमस है इंडिया में, तो ये सोशियो इकोनॉमिक हो गया, राइट। दूसरी बात है कि यहां जो है वैलीज हैं जो सेटलमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं डीप फर्टाइल सॉइल, जैसे कि कश्मीर वैली हो गया, देहरादून वैली हो गया, ये सारे वैलीज जो हैं वो हाईली फर्टाइल सॉइल होते हैं, जिसमें कि हम कैश क्रॉप्स जो है उपजा सकते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स को उपजा सकते हैं, जैसे सैफरन हो गया, ये सब चीज हो गई, राइट। तो ये एक हमारा सिग्निफिकेंस इसके अंदर हो जाएगा, राइट। ये हमारा रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, बहुत सारे हमारे पिलग्रिमेजेस जो है वो यहाँ पे हैं, राइट। तो हमारा एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो जाए, उसमें एग्जाम्पल दे देना, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी,
राइट। तो हमारा रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, राइट, आपका बायोजोग्राफिकल सिग्निफिकेंस सॉइल की बात करके, ये सारे आपको आ जाएंगे सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में। आप दे सकते हो इसको डिजास्टर प्रोन, ये भी सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आ जाएगा हमारा, कि लोग जो है यहाँ पे डिजास्टर प्रोन की वजह से हमेशा वल्नरेबल होते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स देखोगे, जैसे उत्तराखंड फ्लड ऑफ 2013, ऑल दिस एग्जांपल्स देके आप यहाँ पे डिजास्टर प्रोन भी आप बोल सकते हो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर में, राइट। तो ये सारे सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हैं। कोई दिक्कत? तो हिमालय को ऐसे बांट के बहुत सारे सिग्निफिकेंस में आप दे सकते हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, क्या क्या हिमालय से हमें फायदा है। घूमने जाते हैं वो भी एक हो गया, हॉर्टिकल्चर के लिए वो भी हो गया, ठीक है, सैफरन कल्टीवेशन के लिए वो भी हो गया, ये सारी चीजें, रिवर्स के लिए वो भी हो गया, राफ्टिंग कर रहे हैं हम, एडवेंचरस टूरिज्म कर रहे हैं वो भी हो गया, रिलीजियस टूरिज्म कर रहे हैं वो भी हो गया। ऑल दिस थिंग्स जितना भर सकते हो भर दो इसमें। दैट इज द बेस्ट आंसर दैट यू कैन राइट ओवर दिस टॉपिक। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिमालयाज. Himalayas is a very prominent feature, physiographic division of the country. That's why we went into quite detail, क्योंकि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लियर है? कुछ कुछ बातें हम इसके डिजास्टर्स में भी करेंगे कि क्या क्या जो फीचर्स हैं कैसे हैं. अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की. नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स. दिस नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स इज अ फ्लैट प्लेन बिटवीन द पेनिनसुलर रीजन एंड द हिमालयन रीजन. इंडिया का जो मेजर 3 डिविजन्स आप बोलोगे, मेजर 3 डिविजन्स, तो एक तो आपका हिमालयाज है, एक हमारे प्लेट्यूज रीजन्स हैं, राइट. और इन दोनों के बीच में ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से लेके ये विंध्यन रेंज का बीच का जो एरिया है, इसको हम नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स बोलते हैं. साउथ में उसका बाउंड्री हो गया विंध्यन रेंज, नॉर्थ में हो गया हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट. तो ये हो जाता है हमारा क्या, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स. नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आप वेस्ट में जाओगे तो पंजाब राजस्थान से लेके ईस्ट में जाओगे आप तो बंगाल इधर और इधर असम, ये पूरा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का पार्ट है. जनरली उसको भी हम बांटते हैं पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन. पंजाब प्लेन को आप इंडस प्लेन भी बोल सकते हो. तो बेसिकली यहां पे रिवर्स के नाम पे 3 तरह के प्लेन हो जाते हैं, एक इंडस प्लेन, एक गंगा प्लेन और एक ब्रह्मपुत्रा प्लेन. ये तीनों प्लेन हो जाते हैं. 3 मेजर जो रिवर्स हैं आप देखोगे तो जितने भी रिवर्स यहां बह रही हैं इस नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में, कहीं ना कहीं इन्हीं 3 रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज या फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं. ट्रिब्यूटरीज होंगे या ट्रिब्यूटरीज के ट्रिब्यूटरीज होंगे, लेकिन इसी 3 रिवर्स से ये होंगे. समझ में आ रही बात है? अब जो है यहां 2 मेजर रीजन है जो तीनों जगह को, तीनों पार्ट को अलग करती है. एक यहां पे है दिल्ली अंबाला रिज और अरावली रीजन वाला पार्ट है. अरावली रीजन और दिल्ली अंबाला रिज जो है ये इंडस का जो प्लेन है और गंगा का प्लेन है इसको डिफरेंशिएट करती है. और यहां पे एक रीजन है राजमहल गारो गैप. ये राजमहल गारो गैप जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा को अलग करती है. तो ये मान लो कि 3 सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स जो है कैसे अलग हो रहे हैं. तो यहां पे एक अरावली माउंटेन है एंड दिल्ली अंबाला रिज है, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस अरावली माउंटेन, एक्सटेंशन ऑफ दिस अरावली माउंटेन. दिस क्रिएट्स द वाटर सेट, यानी एक जो बाउंड्री है बिटवीन द इंडस एंड गंगा प्लेन. और ये जो राजमहल गारो गैप है, इट इज अ बाउंड्री बिटवीन ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा प्लेन. और ये राजमहल गारो गैप के बीच से देखोगे कि गंगा भी जा रही है और ब्रह्मपुत्रा भी जा रही है. उसके उस साइड पूरा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, उसके वेस्ट साइड पूरा गंगा प्लेन. तो इस तरह के 3 भागों में बटे हुए हैं ये. अब आपको 3-4 चीज नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में जानने हैं. सबसे पहला जानना है इसके फॉर्मेशन, दूसरी बात जानना है इसकी फीचर्स, तीसरा जानना है इसके डिविजन्स, फिजियोग्राफिक डिविजन्स. ये 3 चीज आपको जानने हैं. सिग्निफिकेंस चौथा चीज है, वो तो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम लोग यहीं पे देख लेंगे क्या क्या सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो ये 4 चीज आपको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक, सबसे पहले हम फॉर्मेशंस की बात कर ले. नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के फॉर्मेशन देखो, ये जो है अभी तक जो है हम लोग क्लियरली नहीं सोच पाए हैं कि क्या इसके फॉर्मेशन कैसे हुआ. ये बहुत सारे थियरीज हैं इसके ऊपर फॉर्मेशंस के, और कोई भी थियरी जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अभी नहीं है कि यही थियरी होगी. एक थियरी है फोरडिप थियरी, राइट. एक थियरी है रिफ्ट वैली थियरी. ये फोरडिप थियरी क्या होती है कि जब हिमालय बना था, तेथियन जियोसिंक्लाइन बना था हिमालय के बनने के टाइम में, पहली बात कि इसका टाइम आप पता करो कि कब ये होगा. ये हिमालय बनने के बाद बना है, क्वाटरनरी फेज में. हिमालय बना था टर्शियरी फेज में. हिमालय बना था ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, इस टाइम में बना था. ये जो है प्लिस्टोसीन या उसके बाद बना था. ये तो कंफर्म है कि ये जो बना है वो रिवर्स द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना है, ये भी कंफर्म है. टाइमिंग कंफर्म है और रिवर्स द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना है, ये भी कंफर्म है.
मेजरली जो हिमालय से आ रही हैं रिवर्स, और कुछ जो है विंध्यन से जो जा रही हैं, दोनों ने सेडिमेंटेशन करके प्लेन एरियाज बना दिया। ये हो गया आपका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ये भी कंफर्म है। लेकिन वो जगह कैसे बना जहां पे कि ये सारे रिवर्स आके और सेडिमेंट किए, इसी में सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फोरडिप से बना है। फोरडिप होता है जैसे कि यहां से आपको विंध्यन प्लेट्यू आया, यहां से आपका हिमालय आया, दोनों के बीच में तेथियन जियोसिंक्लाइन था। तेथियन जियोसिंक्लाइन में ये हिमालय बन गया, इधर विंध्यन हो गया, बीच में जो है एक गड्ढा सा रह गया। दैट वाज पार्ट ऑफ द तेथिस सी। वो गड्ढा सा रह गया जो तेथिस सी का ही पार्ट था। तेथिस सी के इस साइड तो हिमालय खड़ा हो गया, इस साइड तो विंध्यन रेंजेस है ही है, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पे क्या हो गया, एक फोरडिप बन गया, बहुत गड्ढा सा। फोरडिप बोलते हैं कि समुद्र के बाद सीधा आपको लैंड उठ जाए। अब यहां पे रिवर्स दोनों साइड से चलने लगी, रिवर्स ने इस फोरडिप को भर दिया और भर के बना दिया पूरा आपको प्लेन। तो ये एक फैक्टर बोला जाता है कि फोरडिप थियरी बोलते हैं। दूसरा थियरी बोलता है रिफ्ट वैली थियरी। वो बोलता है कि विंध्या और हिमालय के बीच में एक रिफ्ट बन गया। रिफ्ट होता है वो लैंड के ऊपर बनता है कॉन्ट्रैक्शन से। फोरडिप जो था वो तेथियन जियोसिंक्लाइन का पार्ट था। ये बोलता है कि एक रिफ्ट बन गया हिमालय और विंध्यास के बीच में। दिस रिफ्ट वाज फिल्ड बाय द रिवर्स एंड फॉर्म्ड व्हाट, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। ये भी होता है एक थियरी, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोगों ने ज्यादा इस पे ये नहीं किया, गौर नहीं किया। ज्यादातर हम इसको फोरडिप थियरी को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो कुल मिला के हम ये मान लिए कि अच्छा ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय देयर वाज अ डिप्रेशन in between Vindhyas and Himalayas, and the rivers of Vindhyas and Himalayas filled that depression to form the northern Indian plains. That was the एक generalized idea जो है हमने बना लिया। तो जनरली कभी ना फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स नहीं पूछा जाता है जनरल स्टडीज में, क्योंकि फॉर्मेशन हम लोग को ऑप्शनल में पूछते हैं, तो उसमें हम लोग थियरीज नाम देके देते हैं कि फोरडिप थियरी ये बोल रहा है, चटर्जी ने ये बोला है, बुराड़ ने ये बोला है, प्रोफेसर बुराड़, प्रोफेसर एसपी चटर्जी, सब अलग अलग जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं इंडिया के जिन्होंने ये सब बात बोला है। तो ये चीजें जो है इन लोगों ने बोला है। तो दैट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी यू नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ। You just should understand that there was a depression between the Vindhyas and Himalayas. That depression was filled by the rivers, by the sedimentation by the rivers, and over a long time it becomes a flat plain and it becomes a northern Indian plains. ये आपको बस मालूम चलना है। अब इसके फीचर्स आपको पूछ सकते हैं कि फीचर्स क्या क्या हैं। तो नॉर्दर्न इंडियंस के फीचर्स हैं कि ये पूरी तरह से अलुवियल फीचर्स हैं, अलुवियल प्लेन्स हैं। अलुवियल बोलते हैं जो रिवर सेडिमेंट्स लाके इकट्ठा करके भरती है, उसको अलुवियल बोलते हैं। तो ये एक अलुवियल प्लेन है। प्लेन्स भी कई तरह के होते हैं, अलुवियल्स होते हैं, इरोजनल प्लेन्स होते हैं जो ग्लेशियर्स वगैरह इरोड करके और प्लेन बना देती हैं। ये क्या बोलते हैं, अलुवियल प्लेन हो गया, इरोजनल प्लेन हो गया, ये सारी चीजें, डिपोजिशनल प्लेन हो गया। तो अलुवियल प्लेन इज अ काइंड ऑफ डिपोजिशनल प्लेन। तो ये इस तरह से बना हुआ है। और दूसरी चीजें इसके कि इसकी जो डेप्थ है वो 2 से 3 किलोमीटर नीचे तक है। समझ में आ रही बात है, 2 से 3 किलोमीटर तक इसका डेप्थ है। इवन कहीं कहीं पे 5 किलोमीटर भी डेप्थ है अंबाला रीजन में, राइट। तो ये इसका मेन फीचर्स है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का। ये लॉन्गिट्यूडनली जो है वो फैला हुआ है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अराउंड 2500 से 3000 किलोमीटर तक इसका स्ट्रेच है, राइट। 3200 किलोमीटर कहीं पे मिलेगा, कहीं पे 2500 किलोमीटर लिखा हुआ मिलेगा, ये इसका स्ट्रेच होता है, राइट। उसके बाद ये डिफरेंट रिवर सिस्टम्स द्वारा बनाए गए हैं, तो उस हिसाब से हम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट रिवर सिस्टम्स के द्वारा। क्लियर है। कहीं कहीं पे इसके ऊपर प्लेट्यूज फॉर्मेशन भी है, जैसे बुंदेलखंड प्लेट्यू हो गया, राइट, ये इसी के ऊपर बना हुआ है। बघेलखंड प्लेट्यू हो गया। तो दीज आर द प्लेट्यू फॉर्मेशंस एंड इसके नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स चारों बगल आपको दिखेंगे। तो सच काइंड ऑफ फॉर्मेशन इज देयर। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो दिस इज द व्हाट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के फीचर्स। अब इसके डिविजन्स क्या क्या हैं? तो इसके लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स आपको, सॉरी फिजियोग्राफिक डिविजन्स मेनली आपको देखने की जरूरत है। इसके मेनली 4 डिविजन्स हैं, राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सबसे नॉर्थ में जो है इसको हम बोलते हैं भब्बड़ प्लेन। उससे साउथ में आपको मिलता है तराई प्लेन। फिर आपको मिलेगा भांगर और फिर मिलेगा खादर। तो दिस इज द नॉर्थ टू साउथ। क्या क्या होगा? द भब्बर, द तराई, भांगर और खादर। अब कौन कैसे बनता है ये आपको ध्यान से बस देख लेना है। इसमें ये व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ना है। वैसे हम लोग पास आगे पिक्चर्स वगैरह भी हैं, हम दिखाएंगे आपको, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड पे अभी हम बताएंगे आपको। ये देखो, ये हिमालय है, यहां से खत्म हो गया।
हिमालय जहां पे खत्म हो रहा है सबसे पहले बनता है भाबर, ठीक है, उसके बाद बनता है तराई, फिर बनता है भांगड़ और सबसे लास्ट में बनता है खादर। ये कैसे बन रहा है ये अब हम बताते हैं आपको। देखो, आपको पता है कि ये हिमालय है, ये शिवालिक हो गया, ये जो है छोटा सा माउंटेन हो गया विंध्यास, ठीक है, ये विंध्यास हो गया, ठीक है। अब यहां क्या होगा कि जो भी रिवर्स इधर से निकलती हैं शिवालिक से, वो अचानक से इनको फ्लैट प्लेन मिलता है। तो माउंटेन से फुटहिल्स पे जैसे ही रिवर पहुंचेगी क्या बनाएगी? फैन सेप्ट अलुवियल प्लेन, फैन अलुवियल बनाएगी। मतलब कि पूरी तरह से जो बाउल्डर्स, ग्रेवल्स, पेबल्स हैं जो बड़े बड़े, वो सब ऐसा लगेगा जैसे कि इकट्ठा कर दी, पूरी तरह से डंप कर दिया अचानक से, क्योंकि अचानक से रिवर्स की ग्रेडियंट कम हो गई। तो वहां आपको लार्ज सेडिमेंट्स मिलेंगे इस रीजन्स में, लाइन से आपको लार्ज सेडिमेंट्स मिलेंगे। ये माउंटेन है पूरा, इस पूरे रीजन्स में आपको ऐसे 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 जो है ट्रायंगुलर शेप में रिवर्स जो है बना देंगे। ये रिवर्स इधर से आ रही है, 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 इधर से आ रही है। ये जो है फैन शेप जो है ये बन गया आपको सारे अलुवियल फैंस इनको बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स की अचानक से जो है स्पीड कम हो गई। दो अलुवियल फैंस का जो ये बीच वाला रीजन है, यहां जो है लैंडस्लाइड से, मास मूवमेंट से आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो इसको अलुवियम, इसको कोलोवियम बोलते हैं। उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अलुवियम और कोलोवियम, कोलोवियम मेनली जो है मास मूवमेंट से आता है, रिवर्स भी लेके आ रही है और ऊपर से जो पत्थर गिर गिर के भी इकट्ठा हो जा रहा है मास मूवमेंट से, राइट। और दो अलुवियम के बीच में एक ट्रायंगल कोलोवियम का बन जा रहा है। तो ये अलुवियम एंड कोलोवियम से जो प्लेन बन रहा है इसको बोलते हैं हम भब्बड़ प्लेन। The Bhabbar plain is the plain formed by deposition by the rivers as well as the deposition by the mass movement। दोनों से एक लार्ज सेडिमेंट्स का, जिसमें पेबल्स, कोबल्स ये सब होंगे, और पूरा ऐसा लगे जैसे गिट्टी जैसा बिछा दिया गया है। इसकी जो ये होगी विड्थ होगी वो 8 से 10 किलोमीटर की होती है। ये हमेशा आपको फुटहिल्स पे मिलेंगे, जहां पे शिवालिक खत्म हो रही है वहां से शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही बात है? तो ये आपको यहां पे मिलेंगे, ठीक। तो ये पूरा रीजन हो जाता है भब्बड़ का रीजन हो जाता है। अब ये भब्बड़ के रीजन में होता क्या है कि इसकी क्या फीचर होती है कि सबसे पहले इसके जो सेडिमेंट्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, ठीक है। प्रॉपर सॉइल फॉर्मेशन इसका नहीं होगा, लेकिन यहां जो है आपको डिफॉरेस्टेशन होगा, मतलब थोड़े बहुत पेड़ पौधे होंगे। कल्टीवेशन ज्यादा नहीं होगा, माने कल्टीवेशन करने लायक सॉइल नहीं होगा। डिप फर्टाइल सॉइल अभी सेडिमेंटेशन से नहीं बना हुआ है, लेकिन चूंकि कंकड़ पत्थर है तो उसके ऊपर फॉरेस्ट जम जाता है, तो यहां फॉरेस्टेड रीजन होगा ये, ठीक है। देयर इज अ फॉरेस्टेड रीजन। उसके बाद यहां क्या होगा कि जो रिवर्स आते हैं नीचे, जो बड़े रिवर्स हैं वो तो ऊपर में फ्लो करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं वो पानी उसके सबके नीचे चली जाती है। समझ में आ रही बात है? सारी पानी जो है अंदर चली जाएगी, क्योंकि यह हाईली पोरस होता है। जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो तो पानी सोख लेते हैं, तो छोटे छोटे स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द रीजन, पूरे रीजन्स में डिसअपियर हो जाते हैं, केवल बड़े रिवर्स यहां से चलेंगे। और सारे डिसअपियर्ड रिवर्स जो हैं इसके नीचे साउथ में इसको फ्लैट प्लेन मिलेगा एकदम। तो जितने भी डिसअपियर्ड रिवर्स थे सब यहां नीचे से अंडरग्राउंड इमर्ज हो जाएंगे। ये तो थोड़ा ऊंचा पे है, ये थोड़ा नीचे पे, जैसे तुम जाओगे ना थोड़ा सा स्लोपी हो जाता जाएगा। दिस इज एट हाइट। वहां सारे रिवर्स गायब हो गए, सारे नहीं, मतलब छोटे छोटे जो रिवर्स हैं, गंगा यमुना नहीं गायब होता, वो अपना फ्लो बनाए रखता है, लेकिन छोटे स्ट्रीम्स गायब हो गए, सब जाके री इमर्ज हो जाएंगे तराई में, राइट। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं तराई, और ये मार्सी लैंड होता है। दिस इज मार्सी लैंड। तराई वाला रीजन था ओरिजिनली एक मार्सी लैंड था, क्योंकि सारे रिवर्स जो है रीअपियर होते थे। इट वॉज डेंसली फॉरेस्टेड, बट नाउ इट हैज बीन क्लियर्ड फॉर द कल्टिवेशन। तो इस रीजन में अब राइस व्हीट की कल्टीवेशन होती है, पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो इसको बोलते हैं तराई। तराई मतलब तर आई, वाटर इमर्स्ड। तर मतलब वाटर, आई मतलब इमर्स्ड, तो उसी से बना हुआ है तराई। तो सारे जो ये हैं पानी है यहां पे इमर्ज हो जा रहे हैं। मार्सी लैंड होगा यहां पे, डेंगू मलेरिया का पूरा रीजन होगा। ये सारे कंडीशंस यहां पे होते हैं तराई में। समझ में आ रही बात है? तो दिस रीजन इज गुड फॉर कल्टीवेशन। ये क्लियर करके इस पे खूब सारे कल्टीवेशन हम लोग कर रहे हैं। पूरा यहां का फॉरेस्ट काट दिया हम लोगों ने, ठीक। तब भब्बड़ समझ गए, अब तराई समझ गए। अब नीचे आते हैं, रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स जो बनाती हैं सेडिमेंट से अपने आसपास, ठीक है, वो होता है भांगड़ और खादर।
बहुत सारी रिवर्स यहां आओगे तो सारी रिवर्स ऐसे हो जा रही हैं, ऐसे हो जा रही हैं, ऐसे हो रही है ना, पीछे से भी जो आ रही हैं वो भी ऐसे आ रही हैं। तो दिस रीजन हैज द रिवर्स लाइक दिस, ऐसे एक दूसरे से मिल रही हैं, राइट। तो ये वाले रीजन्स में आपको भांगड़ और खादर बनेगा। अब क्वेश्चन है कि भांगड़ कब बनेगा, खादर कब बनेगा, राइट। आप क्या कौन रिवर्स जो है, नहीं हिमालय की वजह से नहीं डाइवर्ट रही है, ये जो अंबाला दिल्ली रीज है वो जो उठा हुआ है तो इस रीजन में वेस्ट टू ईस्ट इंक्लाइन हो जा रहा है। वही सतलज वगैरह को देखो तो उस साइड होंगी, बीच में उठ गया है, दोनों साइड नीचे डिप्रेशन हो गया है, तो इसलिए ये सब नीचे जा रही है इस साइड। और वैसे भी हमारा जो पेनिनसुला है वो वेस्ट टू ईस्ट थोड़ा सा झुका हुआ है, तो मेजरली रिवर्स जो है इसी साइड जाती हैं। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो ज्यादातर रिफ्ट वैली में जाती हैं, इसलिए वेस्ट फ्लो कर रही हैं, उनका रास्ता खुद से जियोलॉजी ही ने बना दिया है। अदरवाइज मैक्सिमम रिवर्स देखते हो ईस्ट फ्लो जाती हैं, ठीक। तो ये जो रिवर्स हिमालयन रीजन्स में ईस्ट वेस्ट हो जा रहे हैं, इंडस और गंगा वाले प्लेन्स, ये बिकॉज ऑफ द अंबाला दिल्ली रीज, क्लियर है। तो ये ज्यादातर ऐसे हो जा रही हैं। अब जो है खादर भांगड़ कैसे बनेगा, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था हमने रिवर लैंडफॉर्म्स में, टेरेसेस, टेरेसेस बताया था ना, कि पहले जो है रिवर जो है ऊपर थी, धीरे 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 नीचे चली गई। तो जब रिवर ऊपर थी तो उसके साइड साइड वाला जो रीजन था वो फ्लड प्लेन था। फ्लड प्लेन का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि रिवर ऐसे अगर बढ़ रही है तो ये यहां से दूर का जो रीजन होता है वो फ्लड प्लेन होता है, और वो फ्लड प्लेन उस रीजन को बोलते हैं जहां तक रेनी सीजन के टाइम, अपने ओवरफ्लो के टाइम रिवर वाटर बाहर आ जाता है। तो जिस लिमिट तक रिवर प्लेन बाहर आ जाता है दोनों साइड, दैट इज कॉल्ड द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर, ठीक है। जिस लिमिट तक बाहर आता है दैट इज कॉल्ड द फ्लड प्लेन, ये फ्लड प्लेन हो गया रिवर का, ठीक है। अब रिवर क्या होता है कि शुरू में रिवर जो है ऊपर फ्लो करती है, शुरू में रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, ऐसे रिवर फ्लो कर रही थी, धीरे धीरे क्या होगा कि रिवर अंदर जाने लगी रिजुविनेशन से, तो ऐसा बनने लगेगा, ऐसा होगा, फिर जो है तुम्हारा ऐसा होगा, फिर तुम्हारा ऐसा होता चला जाएगा, जनरली ऐसा होता है। तो ये वाले जो रीजन्स हैं ऊपर वाले, जो पहले रिवर फ्लो करती थी और अपने अगल बगल फ्लड प्लेन बनाई हुई थी, ये सब हो गए भांगर, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड अलुवियल प्लेन। ये पुरानी अलुवियल प्लेन, ये पहले की बनी हुई है, रिवर पहले इतनी दूर में फैलती थी। तो और जब नया वाला ये बना हुआ है जो रिवर नीचे जाने की वजह से अब ये इसका एक्चुअल फ्लड प्लेन हो गया, ये होता है खादर, न्यू अलुवियल। तो भांगड़ और खादर का ये डिफरेंस हो गया। ये मेनली रिवर्स के द्वारा फ्लड प्लेन से ही रिवर के, ये अर्लियर फ्लड प्लेन है, ये अभी के फ्लड प्लेन है, प्रेजेंट फ्लड प्लेन है। इसीलिए जो खादर का जो सेडिमेंट्स देखोगे तो न्यू सेडिमेंट्स मिलेंगे आपको रिवर्स के, जो भांगड़ को देखोगे वो ओल्ड सेडिमेंट्स मिलेंगे। भांगड़ में बहुत सारे कैल्शियम रॉक्स भी मिलते हैं जिनको हम कंकड़ बोलते हैं, राइट। और ये जो है बहुत फर्टाइल सॉइल होता है, समझ आ रही है। तो दिस इज भांगड़, खादर, तराई एंड भाबर, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये पिक्चर देख रहे हो, इसी तरह से सारा है। ये जो है भांगड़ हो गया, ये पुराना वाला हो गया। रिवर जब यहां से यहां तक फैलती थी, बहती थी, तो ये उसका फ्लड प्लेन था, तो यहां भांगड़ बन गया। अब रिवर यहां से यहां बहती है, इतनी ही दूर में बढ़ रही है, तो ये उसका फ्लड प्लेन है। अब यहां तक रिवर पहुंच ही नहीं पाती है, रेनी सीजन में भी नहीं पहुंच पाती है, मैक्सिमम यहां से यहां तक पहुंच पाती है, तो ये इसका खादर बेल्ट हो गया, क्लियर है। तो दिस इज द खादर, भांगर, तराई एंड भाबर। दिस इज द 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। क्लियर है, लिख लोगे, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब एक थोड़ा सा आपको मैं ये भी बता दे रहा हूं, इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ये हो गया आपको पंजाब प्लेन, ठीक है, ये हो गया आपको गंगा प्लेन, और ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन। पंजाब प्लेन जो है मेनली जो है वो इंडस के रिवर से बनी हुई है। आपको मालूम है कौन कौन से रिवर, सतलज, ब्यास, रावी, मेनली यही है। चेनाब और झेलम जो है ऊपर हिल्स में चली जाती है, वहां तक मतलब हमारा प्लेन नहीं होता है, वो माउंटेन्स रीजन हो जाता है, वो उधर से ही पाकिस्तान में चली जाती है। तो सतलज, ब्यास, रावी मोस्टली इसी से जो बनी हुई है, ये गंगा सतलज प्लेन्स इसको इसलिए बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सतलज प्लेन्स और इंडस प्लेन, राइट। तो ये वाला रीजन ये होता है।
इस रीजन्स जो है, ये रीजन्स जो है, अगर इसके आप मॉनसून में बात करेंगे कि यहाँ का रेनफॉल जो है थोड़ा कम है, इधर का रेनफॉल ज्यादा है, यहाँ रेनफॉल जो रिवर्स है वो ज्यादा फेरोसियस हैं, ठीक है। तो ये वाले रीजन्स में जो है मेनली जो है इसके आपको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस देखने होंगे कि यहाँ के जो सॉइल है वो हाईली फर्टाइल है, यहाँ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हीट कल्टीवेशन बेल्ट है, राइट। यहाँ जो है केनाल इरिगेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि रिवर्स है यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा है जिनको हम चोस बोलते हैं। तो दिस ऑल थिंग्स आर अंडर द पंजाब प्लेन्स। ये पंजाब प्लेन्स हो जाते हैं जिनको हम सतलज प्लेन्स भी बोलते हैं। मेन जो रिवर होती है यहाँ पे सतलज होती है जो पूरी तरह से ड्रेन करती है, ठीक है। सेम थिंग जो है। और फिर हम आएंगे गंगा प्लेन में। गंगा प्लेन जो होता है वो थोड़ा सा फ्लैट प्लेन होता है। ये जो है उतना जो रिवर्स होती है यहाँ की वो फ्लड प्रोन ज्यादा नहीं होती हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर नॉट फ्लड प्रोन, तो इसलिए ये जो पंजाब का रीजन होता है वो फ्लड बेल्ट ज्यादा नहीं है। गंगा प्लेन में क्या होता है कि दीज आर द फ्लड प्लेन्स, क्योंकि गंगा जो है ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके चल रही है, सो मेनी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। और ये हेवी रेनफॉल रीजन में भी, खासकर इसका मिडिल पार्ट और जो है लोअर पार्ट, गंगा को भी तीन भाग में बांट करते हैं, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा। अब डिवाइड करके तीनों को अलग अलग आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे नॉर्मली मैं बता दे रहा हूं कि ये जो है आपको जो अपर और मिडिल गंगा होती है वो वेस्टर्न यूपी साइड में होती है, रोहिलखंड वाला जो रीजन होता है, राइट। ये सब जो होती है अपर गंगा होती है, जिसमें आपको हरिद्वार आता है, ऋषिकेश तो माउंटेन में चला गया, उसके नीचे का जो रीजन होता है मेरठ, ओरठ, मुरादाबाद, ये सब चीजें जो है इधर आती हैं। फिर आपका जो है ये मिडिल गंगा जो आता है वो आपको मोस्टली पटना तक मिडिल गंगा में आता है। उसके बाद आप बंगाल में जब जाते हो तो वो लोअर गंगा आता है, राइट। तो ये तीन जो है गंगा के भी पार्ट हैं। इसमें जो मिडिल गंगा और लोअर गंगा है ये जो है फ्लड प्लेन प्रोन रीजन है। ये फ्लड प्रोन रीजन इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे रिवर नीचे जाती है वो वॉल्यूमिनस होते जाती है, उसके ग्रेडियंट्स कम हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे अपना पानी जो है रेनी सीजन में बाहर फेंकने लगती है, मतलब ओवरफ्लो हो जाता है वाटर का। तो अर्लियर लैंडेड जो होता है इनंडेटेड हो जाते हैं और ये पूरी तरह से फ्लड प्लेन हो जाता है। और यहां आते आते तक हम लोग का जो स्लोप होता है वो भी बिल्कुल कम होता है, तो इजिली वाटर बाहर आ जाती है। इधर में जो है स्लोप जो है हाई होता है, तो इसलिए यहां पानी उतना जल्दी नहीं आती है। यहां ज्यादातर जो फ्लड होता है वो बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज होता है। यहाँ पे फ्लड में हम बात करेंगे कि पंजाब हरियाणा में भी फ्लड होता है, लेकिन यहाँ फ्लड रिवर ओवरफ्लो की वजह से नहीं, बारिश की वजह से ही हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पुअर ड्रेनेज है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से इधर होता है। यहाँ की जो मेनली ये हैं रिवर्स हैं, वो दो रिवर्स के बीच में एक द्वाब प्लेन बनाती है। द्वाब एक रीजन होता है जो दो रिवर्स के बीच में होता है, एक रिवर्स ऐसे जा रही है, एक रिवर्स ऐसे जा रही है। ये भी इधर अपना ये डिपोजिट करेगी, ये भी डिपोजिट करेगी। इन दोनों के बीच का जो डिपोजिशनल रीजन होता है इसको हम बोलते हैं द्वाब। द्वाब इज ए डिपोजिशनल ट्रैक बिटवीन टू रिवर्स, दोनों रिवर्स के सेडिमेंट से बन रही है। तो यहां पे आपको अलग अलग रिवर्स से दो रिवर्स मिलकर बहुत सारा द्वाब यहां पे मिलेगा। बाड़ी द्वाब, बिस्ट द्वाब। इसमें जो है बिस्ट मतलब होता है ब्यास और सतलज से, राइट। बाड़ी मतलब होगा आपको ब्यास और रावी से। तो इस तरह से अलग अलग द्वाब से यहां पे फॉर्मेशन है, इसको पंच द्वाब बोलते हैं, ठीक है। तो सारे रिवर्स के बीच का जो है कनेक्शन से यहां पे एक द्वाब बन जाता है। तो द्वाब रीजन यहां पे होता है। यहां पे भी द्वाब होता है, गंगा यमुना द्वाब होता है यहां पे, लेकिन ये जो है मेनली अपर गंगेटिक प्लेन्स में होता है, क्योंकि गंगा इलाहाबाद में आके गंगा में यमुना मिल जाती है। तो उसके पहले गंगा और यमुना अलग अलग होती है, तो दोनों के बीच में द्वाब्स बने होते हैं। मेजर रिवर्स हमेशा द्वाब्स होते हैं, छोटे छोटे रिवर्स ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी आपस में बहुत मतलब सिग्निफिकेंट द्वाब नहीं बनाएंगे। जैसे गंगा और यमुना जो है दोनों बड़े रिवर्स हैं, तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो दोनों के डिपोजिशन की वजह से फ्लैट प्लेन बनता है, जिसे हम द्वाब बोलते हैं, गंगा यमुना द्वाब। तो ये सब जो भी रीजन है आपका मेरठ मुरादाबाद वाला रीजन है, सब गंगा यमुना द्वाब में आता है। समझ में आ रही बात है? तो ये रीजन होता है गंगा यमुना द्वाब का। फिर यहाँ पे जो है गंगा में छोटे छोटे रिवर्स जो है मिलने लगते हैं, ठीक। फिर यहाँ आके वो गंगा जो है इधर चली जाती है और जाके हुगली होते हुए चली जाती है उसमें बांग्लादेश में। फिर हमारा आता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन इसलिए इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो जाता है कि ब्रह्मपुत्रा एक अलग हो जाता है और वहां रिवर बहुत बड़ी है, अगल बगल का प्लेन बहुत पतला है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लडिंग बहुत ज्यादा उधर होता है। वहां की जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो वॉल्यूमिनस होती है, क्योंकि उस रीजन में बहुत हेवी रेनफॉल होता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और हेवी रेनफॉल होने की वजह से बहुत ज्यादा इरोजन होता है लेसर हिमालयाज का। तो रिवर्स के पास सेडिमेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं कि बीच बीच में रिवराइन आइलैंड रिवर बना देती है बिकॉज ऑफ ह्यूज सेडिमेंट्स। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आपका मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है मजूली, जो बीच बीच क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्रा के बीच में बना हुआ है और दोनों साइड से ब्रांचेज हो जाती है, ब्रह्मपुत्रा को आगे जाके फिर मिल जा रही है,
ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हेवी सेडिमेंटेशन ओवर द हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, हेवी रेनफॉल, हेवी सेडिमेंटेशन, उसके बाद ब्रह्मपुत्र वहां बन जाती है। ब्रह्मपुत्र इधर से गंगा, दोनों जो है राजमहल गारो गैप में आके और दोनों अचानक से आप साउथ वार्ड टर्न हो जाती है ब्रह्मपुत्र और चली जाती है उधर वो बांग्लादेश में। तो सच काइंड ऑफ वहां पे का जो प्लेन होता है, असम प्लेन जिसको हम बोलते हैं, वो प्रॉपर्ली ब्रह्मपुत्र प्लेन हो जाता है। तो ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन में तो सतलज प्लेन हो गया, गंगा प्लेन में अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, फिर आपका हो गया इधर ब्रह्मपुत्र प्लेन। तीनों के डिफरेंट, ज्यादा डिटेल में आपको यहां नहीं जाना है, बस आपको डिविजन्स पता होना चाहिए कि किस किस तरह के फॉर्मेशंस होते हैं छोटे मोटे, यही सब आपको जानने हैं बस। क्लियर है? तो दिस इज द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रीजन्स के। देखो, पेनिनसुलर इंडिया जो है हमारा सेकेंड हिमालयन और नॉर्दर्न के बाद पेनिनसुलर जो होता है हमारा थर्ड जो है मेजर डिविजन्स होता है। इन टर्म्स ऑफ एरिया ये सबसे एक्सटेंसिव होता है। ये जो है एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है ये हमारा जो पेनिनसुला है, राइट। जिसके इस साइड में आपको जो बाउंड्री है, यहां क्या है, अरावली। अरावली, ये पूरा अरावली का एक क्रेटन ही था, अरावली है, ठीक है। हमारा जो नॉर्दर्न साइड है वो है विंध्यास, विंध्यन माउंटेन। वैसे विंध्यन के आगे भी पेनिनसुला का पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर डिपोजिशन हो चुका है और वो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का पार्ट हो चुका है। समझ में आ रही बातें? तो ये विंध्यन हो गया इसका। इधर साइड का जो सबसे ईस्टर्न साइड है हमारा, वो है मेघालय प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू, मगर ये जो मेघालय प्लेट्यू है ये मेन पेनिनसुला से अलग हो गया है। वो क्यों अलग हुआ है कि जब हमारा इंडियन पेनिनसुला, पहले इंडियन पेनिनसुला ही था, इंडिया जो था वो पेनिनसुला ही था, हिमालय और नॉर्दर्न इंडियन पेनिनसुला अभी बना है टर्सरी और ये क्वाटरनरी फेज में। जब पैंगिया से टूट के हमारा इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में जा रहा था और जब टकराया तिब्बतन प्लेट्यू से, तो जो थ्रस्ट क्रिएट हुआ, उस थ्रस्ट की वजह से ये जो रीजन है ये सबडक्ट कर गया, और सबडक्ट करके इस साइड बच गया राजमहल हिल्स और इस साइड बच गया गारो हिल्स। तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट वैली क्रिएट हो गया, एक ग्रेबन क्रिएट हो गया, जिसको हम बोलते हैं राजमहल गारो गैप। और ये जो ग्रेबन था, जो रिफ्ट था, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र ने विथ टाइम फिल कर दिया और फिल करके एक प्लेन एरियाज बना दिया। तो इसलिए ये हो गया आपका मालदा फॉल्ट और मालदा रीजन हो गया। तो ये कैसे बना? जब हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट चल जाता नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हिमालयन फॉर्मेशन के टाइम में। तो इसीलिए जो मेघालय वाला रीजन है वो टूट के अलग हो गया हमारे पेनिनसुला से। समझ में आ रही बात है? तो ये जो है हमारा इधर का हो गया। इस साइड जो इसकी बाउंड्री है वो है हमारा वेस्टर्न घाट और इस साइड जो है ईस्टर्न घाट। तो मेनली जो आप देखोगे पेनिनसुलर प्लेट्यू पे, तो मेजर जो माउंटेन रेंजेज है वो अरावली है, विंध्यन रेंजेज है, वैसे छोटे मोटे इधर नीचे भी हैं, सतपुड़ा है, ठीक है, हरिश्चंद्रा है, बालाघाट है, सब रेंजेज हैं, लेकिन ये सब इसके पार्ट हो जाते हैं। विंध्या, सतपुड़ा, इधर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेनिनसुला। फिर आपको राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स के बाद एक गैप आ जाएगा, उस गैप के बाद मेघालय प्लेट्यू, राइट। तो ये इस साइड का एक्सटेंशन हो गया, इस साइड का हो गया। ये पेनिनसुला का जो आगे विंध्या के आगे जो रीजन्स हैं वो प्लेट्यू रीजन्स है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब रीजन्स हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब रीजन्स हैं। इसके नीचे आओगे तो इधर वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट, और दोनों घाट से समुद्र की तरफ कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये कोस्टल प्लेन्स जो बने हैं वो जो है समुद्र के वजह से या रिवर्स की वजह से बने हुए हैं। मेन जो हमारा जो प्लेट है, जो मेन हमारा जो कॉन्टिनेंट है, एज है, वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। समझ में आ रही बात है? अब इसके अंदर सो मेनी छोटे मोटे माउंटेन्स बने हुए हैं। यहां जो है आपको कर्नाटका प्लेट्यू है, तमिलनाडु प्लेट्यू है, प्लस आपको यहां पे डेक्कन प्लेट्यू है, यहां पे तेलंगाना प्लेट्यू है। समझ में आ रही है? यहां पे आपको दंडकारण्य, ये सब सारे प्लेट्यूज हैं, माउंटेन हिल्स हैं। तो सो मेनी छोटे छोटे माउंटेन्स हैं जो कि हम करेंगे एक मैपिंग के क्लास में, कि मैपिंग क्लास में कौन कहां है, कैसे है, ये सारी चीजें। अभी हम जो मेन इनका फॉर्मेशन देखेंगे, अरावली के बारे में बात करेंगे, विंध्यास के बारे में बात करेंगे, मेघालय प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे,
वेस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे, ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे और डेक्कन ट्रैप के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस आर द थिंग्स वेयर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड स्पेसिफिकली कि डेक्कन ट्रैप के बारे में बताइए, डेक्कन ट्रैप कैसे बना, कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो स्पेसिफिक जियोलॉजिकल फेनोमेना से बने हैं। ये डेक्कन ट्रैप कैसे बना है? जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जा रहा था तो एक हॉटस्पॉट था, रियूनियन हॉटस्पॉट, उसके ऊपर से गुजरा तो वल्केनिज्म जो है, स्लो मैग्मा अपराइजिंग की वजह से, फ्लड बेसाल्ट की वजह से यहां पे एक प्लेट्यू रीजन बन गया, जिसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपको जानना है कि ये जो है ट्रायंगुलर जो हमारा ये पेनिनसुला है वो बना कैसे, राइट? मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो है, जब हमारा अर्थ बना तो छोटे छोटे क्रैटन्स थे, छोटे छोटे क्रैटन्स थे। वो क्रैटन्स जो है मिल के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारे प्लेट्स बना दिए। समझ में आ रही बात है? जो हमारा आज इंडियन प्लेट है, एक्चुअली जो प्लेट टेक्टोनिक जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। अभी जो प्लेट टकरा रहे हैं, एक दूसरे से बन रहे हैं, फिर कभी अलग होंगे, पास्ट में भी कभी टकराए थे, एंड देयर हैव बीन सो मेनी साइकिल्स इन द पास्ट। तभी तो माउंटेन्स बने हैं, फोल्ड माउंटेन्स। अभी जो है प्लेट टेक्टोनिक केवल एक्सप्लेन करता है हिमालय को, रॉकीज को, एंडिस को, यही सबको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन उसके पहले का माउंटेन है, व्हाट अबाउट देम? तो इससे यह पता चलता है कि इस तरह के जो इंटरेक्शंस हैं वो पहले भी हुए हैं, हमें नहीं पता है डिटेल में कि कब कब हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं। हम जो है अंदाजे पे कुछ कुछ बताते हैं कि ये इधर प्लेट की है, ये इधर की है। तो मेनली पहले 3 क्रैटन्स हुआ करते थे, जिनको मिला के इंडिया का पेनिनसुला बना। ये हिमालय छोड़ दो, ये ऐसे देखने के लिए बस कि अच्छा लगेगा कि इंडिया है, ठीक है, ये तो कुछ था ही नहीं। अरावली रीजन का एक अपना क्रेटर था, जो अरावली क्रेटर बोलते हैं। ये सिंहभूम रीजन था और ये एक धारवाड़ रीजन था। ये तीनों मिलके इंडिया का पेनिनसुला बना है। मतलब 3 अर्लियर प्लेट्स, उस टाइम के ये मेजर प्लेट्स थे, कंबाइंड टू फॉर्म द इंडियन प्लेट और इंडियन पेनिनसुला। समझ में आ रही बात है? वे बैक, बहुत पहले, आर्कियन टाइम में, प्री कैम्ब्रियन टाइम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे ये हैं माउंटेन्स एंड हिल्स हैं मेजर। वो हमने अभी आपको बता दिया है। ये अरावली रीजन है, ये विंध्यन सतपुड़ा है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये आपका मेघालय प्लेट्यू है, गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर, रेंगमा हिल्स, ये सब जो है पार्ट होता है इसका। ब्रायल रेंज नहीं है, ब्रायल रेंज जो है वो इसका पार्ट हो जाता है, पूर्वांचल हिल्स का। इसका पार्ट कौन कौन होगा? गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर और रेंगमा, ये सब जो है इसके पार्ट होंगे। फिर हमारा ये हो गया कौन सा? वेस्टर्न घाट। ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है, इसके बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। फिर हमारा ये हो गया डेक्कन ट्रैप, राइट? ये तो हो गया अपने माउंटेन रेंजेज में मेजर हो गए। इसके अलावा छोटे छोटे माउंटेन्स बहुत सारे हैं, जैसे ये विंध्या है, ये ऐसे कंटिन्यूअस दिखा, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये अलग अलग माउंटेन्स हैं। विंध्याज है, भंडेर है, भनडेर है, ठीक है, कैमूर है, विंध्याचल है, ये सब मिलकर जो पूरा विंध्या बना है। उसी तरह से ये सतपुड़ा है, सिंगल नहीं है, 7 माउंटेन से बना है, इसलिए सतपुड़ा इसको बोलते हैं। ठीक है, अरावली भी है, अलग अलग है, राइट? सेंट्रल अरावली, नॉर्दर्न अरावली, सदर्न अरावली। वेस्टर्न घाट मोर और लेस कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट फ्यू गैप्स, राइट? उसी तरह से आपका ये ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट जो है पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड है, लगता ही नहीं है कि एक माउंटेन है। छोटे 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 कम से कम 10 माउंटेन्स मिलकर ना ईस्टर्न घाट बनते हैं। ठीक, तो ये चीज था। लेकिन हाँ, ये मानते हैं कि ये जो है एक होंगे, रिवर्स ने इनको कट कर दिया है। समझ में आ रही बात है? तो ये जो है 1 बाय 1 हम देखते हैं। अरावली माउंटेन रेंजेस को सबसे पहले देखते हैं। अरावली माउंटेन रेंजेस जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्डेस्ट माउंटेन ओवर अर्थ। आप इसको बोल सकते हो ओल्डेस्ट माउंटेन ओवर अर्थ। ये और ईस्टर्न घाट दोनों जो हैं वो एक तरह से कंटेम्पोररी है। ईस्टर्न घाट जो है लेटर कंटेम्पोररी है, अरावली बनने के बाद बना है, लेकिन ये जो है ओल्डेस्ट माउंटेन ओवर अर्थ बोल सकते हो। ये प्री कैम्ब्रियन टाइम में है। जियोलॉजिकल टाइम इसके लिए याद है आपको? प्री कैम्ब्रियन टाइम, 2 बिलियन साल पहले बना हुआ है ये, राइट? तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। उस समय जो है प्लेट्स जो हुआ करते थे, एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट और यूरेशियन प्लेट हुआ करता था, छोटे छोटे, जिनसे टकरा के और जिनके सबडक्शन की वजह से अरावली माउंटेन बने हैं। समझ में आ रही बात है? जिस तरह से हमारा हिमालय बना है, उसी तरह से अरावली बना है। अरावली भी पहले हिमालय की तरह था। इनफैक्ट आप सोच सकते हो कि हिमालय से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि हिमालय तो अभी बढ़ ही रहा है ना। अभी तो आज से 5 मिलियन 10 मिलियन बाद हिमालय हो सकता है और ऊंचा जाएगा। तो समझ लो कि उस समय अरावली उतना ऊंचा होगा। एंड विथ टाइम इट हैज बीन इरोडेड बाय विंड, इरोडेड बाय रिवर्स, एवरीथिंग, और इसको इरोड कर कर छोटा बना दिया गया है। इंसेलबर्ग्स का कंसेप्ट आपको बताया था ना, विंड इरोजन में, इंसेलबर्ग्स का, मोनैडनॉक्स का, कि ये सब जो होते हैं इंसेलबर्ग्स, मोनैडनॉक्स, ये सब जो होते हैं ना रेलिक्ट माउंटेन होते हैं।
जो कि रिवर्स विंड्स द्वारा पूरी तरह से काट के छोटे कर देते हैं। विंड्स द्वारा जनरली रेगिस्तान में मिलते हैं, उनको इंसेलबर्ग्स बोलते हैं। एओलियन लैंडफॉर्म्स याद करो, इंसेलबर्ग्स का पूरा पिक्चर भी दिखाया था कि देखो ये इंसेलबर्ग है, बीच इसमें रेगिस्तान में एक माउंटेन पड़ा हुआ है, ठीक है, वो इंसेलबर्ग था। उसी तरह से रिवर्स द्वारा जो बनाया था मोनैडनॉक्स उनको बोलते हैं। तो एक्चुअली के अरावली जो है यही इंसेलबर्ग्स मोनैडनॉक्स का रिप्रेजेंटेटिव है। समझ में आ रही बात है? ये अरावली अराउंड 800 किलोमीटर का इसका लेंथ होता है और ये स्टार्ट होता है आपके दिल्ली से, और पालनपुर जो है गुजरात में है वहां तक ये स्ट्रेचेज है। फ्रॉम दिल्ली टू पालनपुर इन गुजरात ये पूरा स्ट्रेचेज होता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है अरावली का, ये किस डायरेक्शन में होता है? तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है अरावली का, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। यू कैन सी दिस अरावली, दिस इज पालनपुर इन गुजरात, दिस इज दिल्ली। इनफैक्ट ये जो है दिल्ली के बाहर तक है, हरिद्वार तक है, लेकिन उसके ऊपर जो है पूरा अलुवियल प्लेन जो है हो गया है, तो उसके अंदर चला गया है। ये प्रोमिनेंट यहीं तक है। जैसे दिल्ली में भी देखोगे तो कहीं कहीं पर रिज एरिया जो देखते हो, जेएनयू वाला एरिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला एरिया जो आपको पहाड़ी की तरह दिखेगा, दैट आर पार्ट ऑफ दिस अरावली, एक्सटेंशन ऑफ अरावली। और ये जो है आगे हरिद्वार तक गया हुआ है, लेकिन अब वो दिखता नहीं है वहां, क्योंकि उसके ऊपर पूरा जो है सेडिमेंट्री एलुवियल डिपोजिट्स होकर पूरा प्लेन हो गया है। ठीक, ये कुछ ज्योग्राफर्स ये बोलते हैं कि ये यहीं तक नहीं है, ये ऐसे जाके लक्षद्वीप तक गया होगा, ऐसे भी कुछ ज्योग्राफर्स बोलते हैं। और कई बार लक्षद्वीप के फीचर्स में हमें देख के लगता है कि शायद यहां लग रहा है कि कहीं माउंटेन होगा अंदर का देख के, तो हमें लगता है कि हो सकता है कि इसी का माउंटेन होगा। यहां भी हिल्स हैं जिनका पता नहीं चलता है कि कैसे बने, गिर हिल्स, गिरनार हिल्स। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये जो है लक्षद्वीप तक गया होगा, लेकिन जो प्रोमिनेंट अभी है हमारा वो दिल्ली से गुजरात तक का है। इसलिए अभी हम यही मानते हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि हाँ ये लक्षद्वीप तक इसको काउंट कर लें। समझ में आ रही बात है? तो ये जो है तो आपका अरावली है। ये बना कैसे है? तो प्री इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट था, बहुत पहले, ये वाला प्लेट अभी नहीं था। तब जो है एक इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट था और एक यूरेशियन प्लेट था, जिसके टकराने से, सबडक्शन से ये बना है। राइट? इसकी फीचर्स कैसी है? तो ये नॉर्थ से साउथ में जाने से इसकी हाइट बढ़ती है। सबसे हाईएस्ट इसका जो रीजन है, यहां वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? माउंट आबू वाला रीजन। माउंट आबू पे जो हाईएस्ट पिक है वो गुरु शिखर है इसका, 1722 मीटर का। तो एवरेज लेंथ जो इसका होता है वो 600 से 900 मीटर का ही है। राइट? उससे ज्यादा नहीं है। केवल माउंट आबू वाला जो रीजन है इसका, साउथ वाला, वो थोड़ा सा ऊंचा है। 1200 मीटर का एवरेज ऊंचाई है माउंट आबू की, जिसमें कि जो पिक है गुरु शिखर वो सबसे ऊंचा है। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द अरावली रेंज। कोई दिक्कत? ये अरावली रेंज जो होता है वो राजस्थान को दो भागों में बांटता है, वेस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान। इस अरावली का जो ये वाला रीजन होता है वो एक्चुअली में डेजर्टिफाइड रीजन होता है, जहां रेनफॉल बहुत कम है। ये वाला रीजन होता है वो सेमी एरिड होता है, जो कि रेनफॉल उतना ज्यादा कम नहीं है। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए ये डेजर्ट को दो भागों में बांट दिया अरावली। यहां देखोगे तो पूरा थार डेजर्ट है, यहां देखोगे तो आपको कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो ये हो गया आपका अरावली का पूरा ये चीज है। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द अरावली। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेघालय प्लेट्यू की। मेघालय प्लेट्यू वाज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर रीजन। कैसे वो अलग हो गया ये आप जान गए कि इंडियन प्लेट जब जा रहा था तो उससे अलग हो गया, मालदा फॉल्ट क्रिएट हो गया, गाढ़ो राजमहल गाढ़ो गैप बन गया, वो फिल हो गया और बन गया अलग से। यहां पे इसको शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। राइट? यहां पे मेजर 3 माउंटेन्स हैं। राइट? एक गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 मेजर माउंटेन्स हैं यहां पे। राइट? उसके बाद मिकीर और रेंगमा हिल्स भी इसी के पार्ट्स हैं, जो थोड़ा सा ऊपर हैं। राइट? मिकीर और रेंगमा, गारो, खासी, जैंतिया, यही 3 है यहां पे। क्लियर है? ये जो है रीजन है हेवी रेनफॉल वाला रीजन है। सबसे ज्यादा रेनफॉल खासी हिल्स में होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये सॉसर शेप्ड माउंटेन्स हैं, जो कि एंट्री तो दे देते हैं रेन को, विंड को, लेकिन बाहर नहीं जाने देते हैं, उसी के अंदर घूमते रहता है विंड। तो दे आर लाइक अ सॉसर शेप्ड वेयर देयर इज अ नैरो एंट्री बट नो एग्जिट। मतलब एग्जिट नहीं हो पाता है, विंड जो है घूमते 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 तो उसकी सारी क्लाउड जो है वहीं पे सेट करनी पड़ती है। तो इसलिए यहां का जो रेनफॉल होता है वो 1200 सेंटीमीटर 1300 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है साल का। चेरापूंजी, मौसिन डैम, ये सब जो है इसी खासी हिल्स में है। समझ में आ रही बात है? तो ये सब पूरा आपको गाढ़ो, खासी, जैंतिया हिल्स हो जाते हैं। ये जो रीजन है वो लैंडस्लाइड के लिए फेमस है, अर्थक्वेक के लिए है।
इसकी वजह से ये रीजन्स में फ्लडिंग भी होता है, हेवी रेनफॉल है, राइट। तो इसकी वजह से यहां पे जो है डिजास्टर प्रोन होता है। यहां भी बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट्स हैं जिनके नाम पे ही ये बना है। गारो ट्राइब है, खासी ट्राइब है, जैंतिया ट्राइब्स हैं, ये सारे ट्राइब्स के नाम पे ये माउंटेन्स हैं। यहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये जो रॉक्स का बना होता है वो हार्ड रॉक्स का बना होता है, हिमालय की तरह सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है। समझ में आ रही है? क्योंकि ये किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। तो ये हो गया आपका मेघालय प्लेट्यू। फिर हम बात करते हैं विंध्यन माउंटेन रेंज का। विंध्यन माउंटेन रेंज, विंध्यन माउंटेन रेंज को हम लो हिल्स बोलते हैं। मतलब एक माउंटेन रेंज कैसे बोलोगे इसको? एक्चुअली ये विंध्यन बना कैसे है? देखो, विंध्यन जो बना है वो दो कारणों से बना है। विंध्यन को अगर इधर से देखोगे तो ये जस्ट लाइक एन अपलैंड दिखेगा, फोल्डेड माउंटेन की तरह दिखेगा, और पीछे से देखोगे इधर से तो ये ब्लॉक माउंटेन की तरह दिखेगा। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ब्लॉक माउंटेन है कि फोल्ड माउंटेन है। सबसे पहली चीज है, ठीक है। एक्चुअल में यहां जो ये बना है ये थोड़े बहुत फोल्डिंग का भी इसमें रोल है और थोड़ी सी फॉल्टिंग का भी रोल है, मेजरली फोल्डिंग का रोल है, ठीक है। हुआ क्या था कि जब इंडियन प्लेट चल रहा था, सब कॉन्टिनेंट इंडियन, पूरा सब कॉन्टिनेंट यूरेशियन प्लेट से टकराने, तो यहां के जो सेडिमेंट्स थे वो सॉफ्ट थे, तो वो इजिली जो है उसको उठा दिए गए। तो इस साइड से जो है यहां से सेडिमेंट्स आपको ये दिखेगा जैसे कि मटेरियल को ढेर एक्यूमुलेट कर दिया गया है। तो इट इज लाइक अ स्लोली एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मिंग अ माउंटेन लाइक। तो इधर से एकदम जेंटल स्लोप इसको होगा, नॉर्थ से जब आओगे तो वेरी जेंटली स्लोपिंग इट इज, और बहुत लूज कंसोलिडेटेड मटेरियल्स होंगे जो ऐसा लगेगा कि सेडिमेंट्स को उठा के एक ढेर बना दिया गया है, जैसे कूड़ा का पहाड़ बनाते हैं, ठीक। इस साइड क्या हुआ था कि एक फॉल्टिंग हो गई थी, थ्रस्ट की वजह से फॉल्टिंग हो गई थी, और फॉल्टिंग की वजह से इधर एक रिफ्ट वैली बन गई है जिसमें नर्मदा चलती है अभी इस रिफ्ट वैली में। और इस नर्मदा साइड से ये जो विंध्या है ये वर्टिकल वॉल की तरह दिखता है, क्योंकि बीच का जो लैंड है वो नीचे चला गया अचानक से। तो बीच का लैंड नीचे चला गया, तब विंध्या इज लाइक दिस, राइट। ये सतपुड़ा, इसके बीच से जो है क्या जा रही है? नर्मदा। तो नर्मदा साइड से देखोगे तो ये वर्टिकल वॉल की तरह दिखता है। तो इधर से लोग बोलते हैं कि ये ब्लॉक माउंटेन है, इधर से देखोगे तो ऐसे जाता है, तो इधर से लगता है कि ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन जेंटली स्लोपिंग होता है जनरली, अगर लार्ज स्केल पे है तो। फोल्ड माउंटेन हमेशा एकदम स्टिपली स्लोपिंग होता है। तो इस तरह से ये विंध्या बना हुआ है। तो दो फैक्टर्स जो विंध्या में है, एक एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स ड्यू टू कंप्रेशन बाय तिब्बतन प्लेट्यू ऑन द अदर साइड, जब इंडियन प्लेट जा रहा था, और दूसरा जो है इन द प्रोसेस ऑफ subduction and collision there was a rifting and that causes the formation of this rift valley, Narmada rift valley, and because of this Narmada rift valley these regions are projected vertically, तो ये बन जाता है आपको विंध्यन माउंटेन। समझ में आ रही बात है? ये विंध्या माउंटेन जो है गुजरात से लेके और बिहार तक है, सासाराम तक है ये विंध्या माउंटेन। समझ में आ रही बात है? ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन नहीं है, ये भी टुकड़े टुकड़े में है। सबसे इधर वाले रीजन को हम विंध्या, देखो एक विंध्या हिल्स होता है और विंध्या माउंटेन रेंजेज होते हैं, ठीक है। तो पूरा जो ये लंबा है ये विंध्या माउंटेन हो गया, इसके अंदर छोटे मोटे हिल्स भी होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे होंगे। ये विंध्या है, ये भंडेर है, नीचे थोड़ा सा है वनरेर है, विंध्याचल है, कैमूर है, और ये पूरा लास्ट तक सासाराम तक जाता है। ये जो विंध्यन रेंजेज हैं, बहुत पहले ये इंडियन सब प्लेट, जो ये वाला प्लेट था, वो समुद्र में नीचे सबडक्ट हो गया था काफी सालों तक। समुद्र में सबडक्ट होने के वजह से यहां काफी लाइमस्टोन बन गए थे। बाद में जब ये उठा तो इसमें लाइमस्टोन और मार्बल के रॉक्स यहां पे डेवलप हो गए। तो इसलिए विंध्यन रेंजेज में आपको लाइमस्टोन और मार्बल के भी रॉक्स मिलते हैं, खासकर ईस्टर्न साइड में। बिकॉज फॉर ए लार्ज टाइम, फॉर ए लार्ज स्केल ऑफ टाइम, दिस रीजन वॉज सबडक्टेड इन टू द ओशन। समझ में आ रही बात है? तो विंध्यन के बारे में आप लिख दोगे नॉर्मली, कैसे बना, फोल्टिंग की वजह से ब्लॉक दिखता है, और अपोजिट साइड से ये फोल्डिंग दिखता है, किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, कौन कौन से इसके माउंटेन्स है, ये चीजें हम मैपिंग में करेंगे छोटे छोटे माउंटेन्स के बारे में, कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन, इसकी हाइट, सब सारी चीजें ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये जो है कंटिन्यूअस नहीं, एक डाइसेक्टेड माउंटेन्स हैं, डिटैच्ड माउंटेन्स हैं, ठीक। इसमें जो मेजर सैंड्स, जो इसमें सॉरी मेजर जो रॉक्स जिससे बने हैं वो रेड सैंडस्टोन से बने हैं और लाइमस्टोन से बने हैं,
राइट। खासकर ईस्टर्न साइड में आपके लाइमस्टोन के मिलेंगे, कैमूर वाला रीजन, क्योंकि जो सबडक्शन था वो इस साइड था मेनली। समझ में आ रही बात है? रोहतास प्लेट्यू ये सब चीजें जो है वहां तक ये गया हुआ है। समझ में आ रही बात है? नीचे है सतपुड़ा। सतपुड़ा भी कई सारे माउंटेन से, 7 माउंटेन से बना हुआ है। ठीक, इस सतपुड़ा के इधर साइड जाओगे तो अमरकंटक प्लेट्यू आपको मिलेगा। ये अमरकंटक प्लेट्यू जो है एक मेजर जो है वाटर साइड का काम करता है, जहां पे कि वाटर कलेक्ट होता है और वहां से कई सारे रिवर्स नीचे निकलते हैं। उसमें से एक रिवर्स आपका नर्मदा है, एक रिवर्स इधर सोन है, तापी नहीं जाती है यहां से, नर्मदा है, सोन है, तो ये मेन रिवर्स और बहुत छोटे छोटे रिवर्स जाती हैं। तो ये हो गया आपका अमरकंटक। ठीक, तो ये सब चीजें जो है यहां के माउंटेन्स हो गए, सेंट्रल माउंटेन्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आपको विंध्यन माउंटेन हो गया, वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है, देखो वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंपैरिजन भी आता है, कंपेयर द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक, वेस्टर्न घाट्स माउंटेन कैसे बने? सबसे पहला क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट्स माउंटेन 2 कारणों से बने हैं, एक अरेबियन सी के सबडक्शन की वजह से और दूसरा इंडियन प्लेट के मूवमेंट की वजह से। राइट, तो ये जो माउंटेन्स बने हैं, ये माउंटेन्स जनरली आपको बने हैं क्रेटेशियस के बाद, इनिशियल टाइम ऑफ द टर्शियरी पीरियड, इनिशियल टाइम ऑफ द टर्शियरी मतलब ओलिगोसिन के पहले, बिटवीन अराउंड 70 to 50 मिलियन ईयर्स अगो ये बने हैं। राइट, ये कैसे बने हैं? तो एक तो क्या इपिरोजेनेटिक कंसेप्ट आपको पता है, इपिरोजेनेटिक फोर्स एक होता है, ओडोजेनेटिक, इपिरोजेनेटिक याद है? इपिरोजेनेटिक में हमने क्या बोला था कि जो लिम्ब्स ऊपर आते हैं, ये जहां फिर से वो सिंक करते हैं, तो वहां इस सिंकिंग की वजह से एक वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, राइजिंग की वजह से वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से जो वहां का लैंड होगा वो नीचे चला जाएगा। दिस हैपेंड विद दिस अरेबियन सी। अरेबियन सी के पास में भी यहां सिंक कर रहा है कन्वेक्शनल करंट, इसकी वजह से ये, अब हमारे पास कोई कैमरा नहीं है जो हम देख सकें, दिस इज ऑल इंटायर ज्योग्राफी का जो अंदर का चीजें है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन उसी में देखते हैं कि मोस्ट वैलिड प्रेडिक्शंस कौन सा है। तो ये जो है अंदर जो है लिम्ब जा रहा होगा, तो इसकी वजह से ये वाला जो रीजन है वो सबडक्ट हो गया नीचे। समझ में आ रही बात है? ये सबडक्ट हो गया तो ये कैसा दिखेगा? वॉल की तरह दिखेगा, दिखेगा ना। इसीलिए इसका जो ये वाला साइड है, वेस्ट साइड है वेस्टर्न घाट का, वो स्टिप वॉल की तरह दिखता है। समझ में आ रही बात है? एक्चुअल में ये सिंपली एक लैंड था, ये कोई माउंटेन नहीं बना था, ये सिंपली एक लैंड था। समझ में आ रही बात है? जो कह सकते हो इसको एज ऑफ द पेनिनसुला, ये एक पेनिनसुलर प्लेट्यू का एज था, एक प्लेट्यू मान लो, क्योंकि पूरा पेनिनसुला जो है थोड़ा अपलिफ्टेड है, तो एक प्लेट्यू टाइप का मान लो, पूरा प्लेन एरिया नहीं है, प्लेट्यू रीजन था ये। लेकिन इस प्लेट्यू रीजन के एक साइड में सबडक्शन हो गया और दूसरे साइड में क्या हुआ कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जाके टकराने लगा यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट से, तो इंडियन प्लेट जो है सबडक्ट हुआ, तेथिस जो आगे का पार्ट था, तो वो जो सबडक्ट हुआ तब पीछे वाला पार्ट उठेगा, तो ये वाला रीजन था ये उठ गया, और इंडियन जो मूवमेंट था वो इसी डायरेक्शन में था, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इधर साइड सबडक्ट हुआ तो इधर का पार्ट उठ गया, तो इधर साइड से रेज्ड प्लेटफॉर्म, उधर साइड से सबडक्ट हो गया, तो ये बन गया एक माउंटेन। तो दिस इज द ओनली एक्चुअल माउंटेन ऑफ ब्लॉक काइंड ऑफ। ब्लॉक माउंटेन इंडिया में ना एक्चुअल यही है। ब्लॉकिंग किसकी वजह से होता है? जब कोई सबडक्शन इधर साइड में होता है, तो इसका सबडक्शन की वजह से ये ब्लॉक माउंटेन बन गया। इधर से कोई फोर्स लग के इसको रेज नहीं किया गया है, लाइक विंध्या। विंध्या में उधर से तिब्बतन प्लेट्यू ने फोर्स करके रेज किया, यहां कोई रेज नहीं किया इधर से फोर्स करके, ये बस उठ गया, थोड़ा हाइट बढ़ गई इसकी, और इधर से ऑलरेडी नीचे चला गया। तो इसकी वजह से ये जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है वो इस साइड से देखोगे तो जेंटली स्लोपिंग है, जैसे ऐसा लग रहा है कि पहले ये टेबल फ्लैट था, टेबल को ऐसे कर दिए तुम फ्लैट को, तो ये जेंटली स्लोपिंग जाएगा। अपोजिट साइड से देखोगे तो नीचे जाएगा। तो इसीलिए जो वेस्टर्न कोस्ट होता है वो बड़ा नैरो होता है, यहां से ये वर्टिकली राइजिंग होता है। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से वेस्टर्न घाट बना फॉर्मेशन समझ गया वेस्टर्न घाट का। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, वो वही है जिससे पूरा पेनिनसुला बना हुआ है, क्योंकि अलग से इसके ऊपर बहुत कोई सेडिमेंटेशन ये सब चीजें नहीं हुई है, कोई जियो सिंक्लाइन में ये नहीं बना है। तो इसका जो बेसिक नीचे का पार्ट देखोगे तो हार्ड ग्रेनाइट का ही है।
ये बात है कि नॉर्थ वाला रीजन जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पे डेक्कन प्लेटू डेवलप हो गया है, ऊपर से आके फ्लड जो है बेसाल्ट का वो इसको दबा दिया। लेकिन जो नीचे वाला रीजन है जहां डेक्कन प्लेटू नहीं बना था, इस रीजन में अभी भी वो बिल्कुल जो है हार्ड ग्रेनाइटिक रॉक्स का ही बना हुआ है। अब इसके जो फीचर्स आप देखोगे तो सबसे 3-4 इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक तो कि ये वेस्ट साइड में वर्टिकली राइजिंग है, ईस्ट साइड में जेंटली स्लोपिंग है। एक नंबर बात इसके बारे में याद रखना है। दूसरा नंबर बात रखना है कि ये कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं है, बीच में बस छोटे छोटे गैप्स हैं। इट इज कंटिन्यूअस। हियर ये जो है नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी माउंटेन पे एक गैप यहां बन रहा है बड़ा सा, और इधर में 2 गैप बन रहे हैं। ये मुंबई वाला रीजन है, यहां से एक पास है, यहां से एक पास है, राइट। ये इसको बोलते हैं हम थाल घाट, इसको बोलते हैं हम भोर घाट। थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है, और भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। तो यही 2 मेजर पास हैं। समझ में आ रही बात है? थाल घाट और भोर घाट। और एक पास यहां है, यह पाल घाट है, कोचीन को कनेक्ट करता है इधर कोयंबटूर से। तो यही 3 इसमें बस ब्रेक है, बाकी ये कंटिन्यूअस है। ये अलग अलग माउंटेन नहीं है विंध्या, सतपुड़ा और ईस्टर्न घाट की तरह। समझ में आ रही बात है? उसके बाद ये स्टार्ट कहां से होता है? तो ये तापी से स्टार्ट होता है। यहां तापी रिवर है, राइट। तापी रिवर से लेके नीचे कहां तक होगा? ये कन्याकुमारी तक होगा। एक क्वेश्चन पूछा था 2017 में, वेस्टर्न घाट्स पासेस फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स? तो ये तो उधर चला जाएगा ना, तमिलनाडु में, वहां नहीं है, ये इधर ही साइड में होगा। है नीलगिरी हिल्स में, लेकिन इसको हम मतलब कन्याकुमारी तक ही मानते हैं हम लोग। इधर साइड का जो पार्ट होता है ना, वो उधर चला जाता है। वो नीलगिरी हिल्स ज्वाइन करता है दोनों साइड को, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को। बोले एक्चुअल में नीलगिरी हिल्स जो है ट्राई जंक्शन पे है, लेकिन ये केरल में ही मानते हैं। मेनली लोग 4 मार कहते हैं, 4 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये तापी रीजन है, गुजरात में पड़ता है, यहीं से शुरू हो जाता है। ये गुजरात भी उसमें आप कनेक्ट करोगे, क्योंकि तापी से शुरू हो जाता है, तो यहीं से आप स्टार्ट हो जाएगा। सूरत रीजन यहां पे है, तो यहीं से शुरू हो जाता है ये। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वो एक्चुअली स्टेटमेंट वाइज था कि द वेस्टर्न घाट्स पासेस थ्रू ओनली 4 स्टेट्स। ठीक है, तो वो गलत था, 4 से ज्यादा है, 5 स्टेट्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सब चीजें हैं। वैसे इसका तमिलनाडु में भी है एक्सटेंशन। ये चीजें अगर लाइन बाय लाइन आपसे पूछेगा कौन कौन स्टेट्स बताओ, तो ऑफ कोर्स आप तमिलनाडु को भी बोलोगे। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन था वो 4 स्टेट्स का। ये नीलगिरी का पार्ट है, नीलगिरी हुआ, ये पालनी हिल्स हुआ, ये सब जो है ये इसी के पार्ट में आता है। ठीक है, तो उसमें है, वैसे उसमें कोई ये डाउट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन वेस्ट साइड में ये 5 स्टेट्स है, गुजरात को मत भूलना। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। तो कहां से कहां तक शुरू हो गया? कंटिन्यूअस चेन है, ये पता चल गया। इसकी जो हाइट है वो जनरली 900 मीटर एवरेज हाइट है इसकी, लेकिन आप नॉर्थ से साउथ में जाओगे तो इट हाइट विल इंक्रीज, इट्स हाइट विल इंक्रीज एज यू गो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। समझ में आ रही बात है? और जो साउथ वाला इसका पार्ट है वो हाईएस्ट पार्ट है इसका, राइट। ये नीलगिरी हिल्स है, ये अन्नामलाई हिल्स है, जो मेजर पिक्स हैं वो इन्हीं सब रीजन्स में है। अन्नामलाई हिल्स में अनाई मुद्दी करके जो हाईएस्ट पिक है इसका 2695 मीटर का। उसके बाद आपको नीलगिरी हिल्स में डोडा बेटा है, इसका सेकंड हाईएस्ट पिक है। समझ में आ रही बात है? तो जितने भी इसके हाईएस्ट पिक्स हैं वो सब जो है कितने हैं? साउथ साइड में है। समझ में आ रही बात है? तो ये इसका स्ट्रक्चरल फीचर्स हो गया। इसका जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड का रीजन है, इट इज ओवरलेंड बाय द बेसाल्ट ऑफ द डेक्कन रीजन। ये जो डेक्कन ट्रैप बना था, तो उसका पूरा बेसाल्ट इसके ऊपर से डाल दिया गया है। तो ये पूरा इसका नॉर्थ साइड में ये हो गया। साउथ साइड जो है इसका ओके है। समझ में आ रही बात है? तो ये इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स हो गए, राइट। हार्ड बना हुआ है, फ्रेजाइल नहीं है, बिल्कुल इजिली इरोडेड नहीं है, रिवर्स इजिली इसको इरोड नहीं कर पाते हैं। रिवर्स जो है इससे आपको इनको ये नहीं मिल पाती है, सेडिमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इधर से फ्लो करने वाले जो रिवर्स होते हैं वो जनरली डेल्टा नहीं बनाते हैं। ये भी एक कारण है। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए ये सब चीजें हैं। अब हम लोग जैसे ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर का डिफरेंस। इसमें भी थोड़ा सा आप इसके बारे में जानोगे। ठीक है, हम थोड़ा इसके बारे में रेनफॉल जब पढ़ेंगे मॉनसून पे, इसमें भी थोड़ा जानोगे। ये जो गैप्स होते हैं दे प्रोवाइड द एंट्री ऑफ मॉनसून विंड्स द इंटीरियर पार्ट। थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है, ये रेन शैडो इफेक्ट क्रिएट करता है इधर के रीजन्स के लिए। इसका जो वेस्ट साइड है
वो हाईली ह्यूमिड रीजन है, 200 से 300 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। इसका जो ईस्ट साइड है वो बिल्कुल सेमी एरिड रीजन है, 40 से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। मुंबई और पुणे के बीच में डिफरेंस आपको दी जाए, मुंबई में 200, पुणे में 40। समझ में आ रही बात है? मुंबई में 200, नासिक में 30-40 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो इस तरह से जो है ये रेन शैडो इफेक्ट क्रिएट करता है। तो दिस इज द वेस्टर्न घाट। फॉर्मेशन समझ गए, स्ट्रक्चर समझ गए, कोई दिक्कत? देखो, ईस्टर्न घाट्स माउंटेन इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। ये कंपेरिजन आपको पूछेगा सबसे पहली चीज कि कंपेयर करो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट इज ए ब्लॉक माउंटेन, हम जो भी बता रहे हैं ना कंपेरिजन के टर्म्स में बताएंगे। वेस्टर्न घाट इज ए ब्लॉक माउंटेन क्योंकि वहां पे सबडक्शन हुआ है अरेबियन सी का, राइट, इसकी वजह से बना है। इसकी हाइट बस रेज हो गई है थोड़ी सी जब हिमालय जो है जाके बना, उस टाइम में जब इंडियन प्लेट सबडक्ट हुआ यूरेशियन प्लेट में। ईस्टर्न घाट इज अ फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन लाइक अरावली। बहुत पहले जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों एक दूसरे से टकराए थे और उससे जो बना था आपको ईस्टर्न घाट्स। समझ में आ रही बात है? वेस्टर्न घाट इज अ कंटिन्यूअस माउंटेन, कंटिन्यूअस चेन विथ ओनली फ्यू गैप्स। ईस्टर्न घाट इज हाईली डिटैच्ड माउंटेन्स। ईस्टर्न घाट्स को ईस्टर्न घाट केवल ज्योग्राफर्स बोलते हैं, बाकी लोग नहीं बोलते हैं। बाकी लोग मानते ही नहीं है कि ईस्टर्न घाट पूरा एक माउंटेन है। वो इतना अलग अलग है सारे माउंटेन्स कि लोग डोंट बिलीव दैट इंटायर ईस्टर्न घाट इज कुड बी वन इन द पास्ट, लेकिन था पहले पूरा एक था। ठीक, डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कुछ ज्यादा इरोड हो गए हैं, कुछ कम इरोड हो गए हैं, राइट। ईस्टर्न घाट्स आर हाईली इरोडेड माउंटेन, फ्रेजाइल एंड इरोडेड। वेस्टर्न घाट्स आर हार्ड एंड रेसिस्टेंट टू इरोजन। समझ में आ रही बात है? वो हार्ड और रेसिस्टेंट टू इरोजन है। इधर ईस्टर्न घाट जो है ग्रेनाइटिक फॉर्मेशंस का ज्यादा है, ग्रेनाइटिक फॉर्मेशंस का ज्यादा है, राइट। और अपर सेडिमेंट्री लेयर है जैसे माउंट हिमालय का था, लेकिन अब उसका सेडिमेंट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब केवल उसका ग्रेनाइटिक हार्ड रॉक्स बन गया है। इसलिए इधर जो है आपको सॉइल भी जनरली रेड सॉइल मिलता है, क्योंकि ग्रेनाइट के आपको ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। ग्रेनाइट इज रिच इन आयरन। वेस्टर्न घाट का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बेसाल्टिक है पूरी तरह से, क्योंकि डेक्कन ट्रैप है। उसका सदर्न पार्ट जो है थोड़ा ग्रेनाइटिक है। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया कंपैरिजन। देयर आर सो मेनी रिवर्स दैट हैव कार्व्ड आउट वेरी ब्रॉड वैलीज इन द ईस्टर्न घाट्स, जैसे कि गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। इन सब का बहुत ही ज्यादा ब्रॉड वैलीज हैं जो कि अलग अलग माउंटेन को करके रखे हैं, राइट। इन वेस्टर्न घाट्स rivers are flowing in the rift valleys, they have not carved any kind of broad valleys। कोई broad valleys rivers ने नहीं कार्व किया है वहां पे। वो लोग जो चलते हैं तो जैसा माउंटेन उनको अलाउ करता है उसी तरह से वो चलते हैं। वो माउंटेन के साथ जबरदस्ती काट के अपना रास्ता नहीं बना पाते हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट्स में माउंटेन को काट के रिवर्स ने अपना रास्ता बना दिया है। समझ में आ रही बात है? क्योंकि वो फ्रेजाइल था। क्लियर है? इन टर्म्स ऑफ हाइट ईस्टर्न घाट इज लोअर देन द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो लो होती है वेस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट जो है कोस्ट से काफी दूर स्टार्ट होता है, तो देयर इज अ ब्रॉड कोस्ट बिटवीन द ओशन एंड द ईस्टर्न घाट, वेयर एज देयर इज अ वेरी नैरो कोस्ट बिटवीन द ओशन एंड वेस्टर्न घाट। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द वेस्टर्न घाट इज क्वाइट स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेजी से, क्योंकि स्लोप उसको बहुत ज्यादा वहां पे मिल रहा है। रिवर्स फ्लोइंग इन द ईस्टर्न घाट्स इज क्वाइट स्लो, बहुत स्लो है, जिसकी वजह से डेल्टा फॉर्मेशन वगैरह सब तुमको ईस्टर्न कोस्ट में दिखता है, वेस्टर्न कोस्ट में नहीं दिखता है, क्योंकि रिवर फास्ट है, वो जो है डंप नहीं करेगी डिपोजिशन। इट हैज द पावर टू ट्रांसपोर्ट टिल द ओशन। तो वहां ज्यादातर एस्टुरीज बनते हैं, इधर ज्यादातर डेल्टा बनता है। तो ये सब बेसिक डिफरेंस हुआ ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंस बता दोगे, इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन बता दोगे। वेस्टर्न घाट कब बना है? आफ्टर क्रेटेशियस। ईस्टर्न घाट कब बना है? प्री कैम्ब्रियन। दोनों में देखो डिफरेंस कितना है। वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन हो गया, ईस्टर्न घाट फोल्ड माउंटेन हो गया। वेस्टर्न घाट एक साइड से जेंटल, एक साइड से स्टिप, ये दोनों साइड से जेंटल, स्टिप कहीं से नहीं है ये। इन टर्म्स ऑफ हाइट ये लो है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट थोड़ा हाई है। इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी ये जो है हाईली डिटैच्ड है, नॉट कंटिन्यूअस ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस। इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल देखोगे तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट पार्ट है इट रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, इट रिसीव्स 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और इवन लेस, राइट। इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन देखोगे तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड का वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काइंड ऑफ है, इधर जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट है।
जितना ज्यादा रेनफॉल होगा उतना ज्यादा एवरग्रीन काइंड ऑफ फॉरेस्ट होगा, जितना कम रेनफॉल होगा उतना डेसिडुअस काइंड ऑफ फॉरेस्ट होगा। डेसिडुअस का मतलब होता है जो कि अपना पतझड़ उसमें हो जाता है। डेसिडुअस भी दो तरह का होता है, मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट डेसिडुअस जो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता है, जहां रेनफॉल 100 से 150 सेंटीमीटर है। 100 से सेंटीमीटर के करीब में रेनफॉल होगा तो वहां पे ड्राई डेसिडुअस होगा 80 से 100 में। 150-200 से ऊपर रेनफॉल होगा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। समझ में आ रही बात है? तो रेनफॉल पर डिपेंड करता है, क्यों इधर कम रेनफॉल है, क्यों उधर ज्यादा रेनफॉल है, अभी हम बात करेंगे। वेस्टर्न घाट्स में जो रेनफॉल होते हैं वो केवल साउथ वेस्ट मानसून से समर टाइम में होता है। ईस्टर्न घाट में जो रेनफॉल होते हैं आधा पार्ट जो है कोरोमंडल कोस्ट वाला पार्ट, वहां जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से विंटर टाइम में होता है। ठीक है, तमिलनाडु रीजन्स में। तो ये सारी जो है डिफरेंसेस जो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में इन टर्म्स ऑफ ये। अब जो हिल्स हैं वहां पे, ठीक है, तो बहुत सारे हिल्स हैं देखोगे तो यहां पे आप वेनुकोंडा है, पालकोंडा है, नगारी हिल्स है, ये जावेरी सिरोय हिल्स इसमें शुरू हो जाता है आपको तमिलनाडु में। ऊपर में जाओगे तो पालकोंडा, वेनुकोंडा, ये सब जो है हिल्स है। नल्लामल्ला हिल्स है, ये सब आंध्रा में हिल्स है। तो ये सारे लाइन से अलग 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 माउंटेन्स हैं बिल्कुल, और इन दोनों के बीच में ब्रॉड वैलीज हैं जो रिवर्स ने कार्व आउट कर दिया है। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। क्लियर रहेगा? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों कहां मिलता है? नीलगिरी हिल्स के पास। नीलगिरी हिल्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। नीलगिरी हिल्स से आगे तक जाता है वेस्टर्न घाट्स। नीलगिरी हिल्स के नीचे है कौन सा? अन्नामलाई हिल्स। उसके नीचे कौन सा है? कार्डमम हिल्स। समझ में आ रही बात है? तो कार्डमम और अन्नामलाई जो है नीलगिरी से भी नीचे है। वैसे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों मिल जाते हैं इस नीलगिरी हिल्स पे। समझ में आ रही है? तो नीलगिरी हिल्स इज द जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं डेक्कन ट्रैप की। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप का जो हमारा फॉर्मेशन है वो क्रेटेशियस टाइम में फॉर्म हुआ। क्रेटेशियस टाइम यानी अराउंड 120 मिलियन ईयर्स अगो। आफ्टर द एंड ऑफ जुरासिक टाइम इट वाज द इनिशिएशन ऑफ, इट वाज द अराइवल ऑफ क्रेटेशियस टाइम। जूलॉजिकल टाइम स्केल का क्लास हमने कल किया था, उसमें सारा कुछ ये सब डिस्कस किया था क्रेटेशियस क्या होता है। क्योंकि जैसे ही हम ये सब वर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसका शकल बन जा रहा है, क्या बोल रहे हैं सर, एलियन टाइप। ठीक है, तो दिस आर द पार्ट ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, उसको एक बार देख लेना कल के वीडियो को। ये टाइम वाइज ना जियोलॉजी में बांटे गए हैं, कितने मिलियन साल पहले को क्या बोलते हैं, इसके पहले क्या बोलते हैं। तो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ क्रेटेशियस टाइम। जब जुरासिक टाइम में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ, पैंगिया से टूटा, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ, तो दैट टाइम देयर वाज ए रीयूनियन हॉटस्पॉट इन द व्हाट इंडियन ओशन। इस रीयूनियन हॉटस्पॉट से जैसे क्रॉस किया इंडिया, तो यहां पे वल्केनिज्म स्टार्ट हो गया। वल्केनिज्म स्टार्ट होगा और यह फैलने लगा सब जगह, इस तरह से फैलने लगा, और एक लीनियरली इस शेप में जो है स्टार्ट हुआ, सब जगह फैलने लगा। फैलते 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 एक लार्ज प्रोविंस ऑफ बेसॉल्ट जो है बन गया। दिस लार्ज प्रोविंस ऑफ बेसॉल्ट इज व्हाट? डेक्कन ट्रैप। समझ में आ रही बात है? ये आगे तक था लेकिन ये सब इरोड हो गए, सब इधर जो जो बीच में खाली दिख रहे हैं ना सब इरोड होकर खत्म हो गए। तो ये लार्ज बेसॉल्ट जो है यहां पे प्रोविंस बन गया, जिसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, ये डेक्कन ट्रैप जो है आपको बेसॉल्ट का बना हुआ है और थिक लेयर ऑफ बेसॉल्ट है, राइट। 1-2 किलोमीटर थिक जो है नीचे तक बेसॉल्ट ये फैला हुआ है। और इस बेसॉल्ट रीजन के वेदरिंग एंड ट्रांसलोकेटरी प्रोसेसेस के थ्रू यहां एक बहुत ही अलग तरह का सॉइल बना है जिसे हम रेगर सॉइल बोलते हैं या ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ब्लैक कलर क्यों देता है ये? क्योंकि ये बेसॉल्ट है। बेसॉल्ट के वेदरिंग से हमें ब्लैक कलर मिलते हैं। ये ह्यूमस की वजह से ब्लैक नहीं है, ये जो हमने वर्ल्ड इसमें बात किए थे। दिस इज बिकॉज ऑफ द दिस। ये आपको याद होगा जब हमने ग्रेनाइटिक रॉक्स और बेसाल्टिक रॉक्स की बात करी थी तो उसमें हमने बताया था कि ग्रेनाइटिक रॉक इज लाइट इन कलर, बेसाल्टिक रॉक इज डार्क इन कलर। तो ये डार्क कलर का इसका रॉक ही होता है, इसीलिए जो सॉइल का कलर होता है वो डार्क कलर का होता है, राइट। और बेसॉल्ट के इससे जो निकलता है जो मटेरियल मिनरल वो ज्यादातर क्ले होता है बेसॉल्ट के वेदरिंग से। तो क्ले होने की वजह से ये सॉइल जो है क्लेई सॉइल होता है और इसकी वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है, वाटर रिटेंशन बहुत हाई होती है। सूखने के बाद ये प्लेटी स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें क्ले की वजह से, राइट, बंजर की तरह। तो दिस इज द ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन। ये जनरली जो है कहां होता है? तो वेस्टर्न घाट से लेके और ईस्ट ऑफ द रीजन,
महाराष्ट्र का रीजन इस तरह बना हुआ है। देखो इंडिया में मेजरली दो तरह के इस तरह के फॉर्मेशंस हुए हैं, बेसाल्टिक फॉर्मेशंस। एक तो ये डेक्कन हुआ है, एक यहाँ राजमहल के पास हुआ है। बहुत पास्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री में एक करग्यूलिन हॉटस्पॉट भी है। उस करग्यूलिन हॉटस्पॉट से पहले एक बार इंडिया गुजरा था तो यहाँ राजमहल हिल्स बन गया था। रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा तो यहाँ ये बन गया। तो राजमहल हिल्स ऑल्सो फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस व्हेन इंडिया वाज पासिंग ओवर फ्रॉम द करग्यूलिन क्या हॉटस्पॉट। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, मेनली ये इतना छोटा है कि हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जनरली आपको डेक्कन ट्रैप के बारे में पूछते हैं। ये जो है आपको डिटेल में जब पूछते हैं कि कौन कौन सा वोल्केनिक फॉर्मेशंस इंडिया में है, तब हम इसको भी काउंट कर लेते हैं। इसको ईस्टर्न बेसाल्ट प्रोविंस बोलते हैं। तो छोड़ दो उसको, वेस्टर्न घाट्स में ये सब हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डेक्कन ट्रैप हो गया। क्रेटेशियस में हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मूविंग ओवर वेयर, मूविंग ओवर द रियूनियन हॉटस्पॉट, एंड बिकॉज ऑफ द ओजिंग आउट ऑफ द मैग्मा दिस वाज फॉर्म्ड अ बेसाल्ट प्रोविंस। बेसाल्ट प्रोविंस बोलते हैं, और इससे जो है ये सारी चीजें बन जाती हैं। ब्लैक सॉइल एंड कॉटन के कल्टीवेशन के लिए फेमस हो जाता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू। फिर हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। डेक्कन ट्रैप है वो। ट्रैप इसलिए बोलते हैं कि वो स्टेयर साइड बना होता है, क्योंकि ये ना अलग अलग सक्सेसिव स्टेजेस में ये बने हुए हैं। एक बार में सब नहीं बने हुए हैं। थोड़ा सा रिलीज हुआ, एक स्टेज बना, फिर थोड़ा रिलीज हुआ, ऊपर दूसरा बना, फिर रिलीज हुआ, उस पर तीसरा बना। तो ऐसे स्टेयर वाइज बन गया, इसलिए इसको ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप का मतलब होता है स्टेयर, सीढ़ियों की तरह बना हुआ है। समझ में आ रही बात है? अब इसके बहुत सारे ये होते हैं, मतलब डिविजन्स होते हैं। मांडला ट्रैप, सौराष्ट्र ट्रैप, तो उतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स वाज डिफरेंट फ्रॉम द कोस्टल प्लेन्स, इसीलिए इसको हम पेनिनसुला में करते हैं। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स वर ऑल टुगेदर डिफरेंट, कोस्टल प्लेन्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। कोस्टल प्लेन्स की जब भी बात करेंगे तो जैसे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की हमने बात करी है, हमेशा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अलग से हम बात करेंगे। राइट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होता है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। देखो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, इंडिया हो गया, इसको भी ना कंपैरिजन के टर्म में हमेशा समझना। कंपैरिजन के टर्म्स में हमेशा समझना। समझ में आ रही बात है? ज्यादा तुमको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी ज्यादातर कंपैरिजन के टर्म्स में पूछता है। ये कच्छ से लेके और मालाबार तक ये होता है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। राइट फ्रॉम द कच्छ टू द मालाबार। इसमें कच्छ होता है, काठियावाड़ होता है, कोंकण कोस्ट होता है, कन्नड़ा कोस्ट होता है और मलाबार कोस्ट होता है जो कन्याकुमारी तक होता है। और ईस्टर्न कोस्ट जो शुरू होता है ये एक कन्याकुमारी से लेके और यहां जो है आपको चिल्का लेक है उड़ीसा में, चिल्का लेक तक होता है। समझ में आ रही बात है? चिल्का लेक का ऊपर का जो कोस्ट है, जो बंगाल का कोस्ट है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, दैट इज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। याद रखना हमेशा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा, सर बंगाल में भी तो समुद्र है, वहां भी तो कोस्ट है, उसको हम क्यों नहीं बोल रहे, क्यों चिल्का लेक तक खत्म कर दे रहे हैं? क्योंकि उधर के रीजन का जो कोस्ट बना है वो मेनली हिमालयन रिवर्स के डिपोजिशन से बना है। समझ में आ रही बात है? दैट हैव फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द हिमालयन रिवर्स डिपोजिशन। और यहां का जो कोस्ट बना है वो मेनली पेनिनसुलर रिवर्स के डिपोजिशन से बना है, और इधर का जो कोस्ट है वो मेनली सी वेव्स से बना है। समझ में आ रही बात है? अब कोस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है इमर्जेंट कोस्ट, एक होता है सबमर्जेंट कोस्ट। इमर्जेंट एंड सबमर्जेंट। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो मोस्टली जो है सबमर्जेंट कोस्ट हैं, मालाबार नहीं है। मोस्टली जो है सबमर्जेंट कोस्ट है एक्सेप्ट मालाबार। ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स हैं वो मोस्टली इमर्जेंट कोस्ट हैं। सबमर्जेंट एंड इमर्जेंट कोस्ट हो गया। इसको जो है आप अगर बांटोगे तो यहां कन्याकुमारी से लेके पुलिकट लेक को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। पुलिकट लेक तक कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। पुलिकट इज द बाउंड्री बिटवीन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो ये पुलिकट लेक हुआ, यहां तक ये हो जाता है कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। पुलिकट लेक से कोलेरू लेक तक ये कहलाता है नॉर्दर्न सरकार, और कोलेरू से और चिल्का लेक तक ये कहलाता है उत्कल प्लेन। उत्कल प्लेन मतलब उड़ीसा वाला प्लेन। समझ में आ रही बात है? तो एक यहां पे तमिलनाडु का हो गया, एक आंध्र प्रदेश का हो गया, एक उड़ीसा का हो गया। तो तीनों का अलग अलग हम नाम देते हैं। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द नेम ऑफ 3 कोस्टल रीजन्स। उसी तरह से यहां जो होता है कच्छ कोस्टल प्लेन होता है, काठियावाड़ होता है, तापी से लेके गोवा तक कोंकण होता है। ठीक है, उसके बाद गोवा से लेके मुड़मगांव तक आपको कन्नड़ा होता है, और वहां से लेके नीचे कन्याकुमारी तक आपका मालाबार होता है। समझ में आ रही बात है? तो वो हो जाता है आपका कोंकण, कनाडा, मालाबार।
इधर हो गया आपको कोरोमंडल, नॉर्दर्न सर्कार और उत्कल, उत्कल प्लेन। तो ये सारे प्लेन्स हो गए। तो ये बने हैं इमर्जेंट और सबमर्जेंट से। ये मोस्टली जो है बना हुआ है सबमर्जेंट से, समुद्र के अंदर चला गया। और इसमें जो मालाबार है वो इमर्जेंट से बना हुआ है। इधर जो है वो मेनली सब बने हैं इमर्जेंट से। समझ में आ रही बातें? अब दोनों के बीच जो है फॉर्मेशन और इसके स्ट्रक्चर का हम डिफरेंसेस देखेंगे, राइट। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो मोस्टली जो है रिवर्स द्वारा फॉर्म है। यहां मेनली इमर्जेंस हुआ है, सबमर्जेंस नहीं हुआ, इमर्जेंस हुआ है। इधर जो है मेनली देखो ऐसे लोकल लेवल पे भी ना इमर्जेंस सबमर्जेंस चेंजेस होते हैं, लेकिन मेजरली देखोगे तो इधर जो है इमर्जेंट है और इधर जो है सबमर्जेंट है। समझ आ रही बातें? मोस्टली यहां इमर्जेंट है। तो यहां के कोस्ट को देखोगे तो समुद्र तक फैले हुए हैं, ऐसे है। समझ में आ रही बातें? इसको प्रोग्रेडिंग सोर्स बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर तक फैले हुए हैं। तो यहां के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं, इधर के नैरो होते हैं। समझ में आ रही बातें? ये ब्रॉड इसलिए होते हैं कि रिवर्स जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स बिछाते हुए ऊपर जाती है, और दूसरी बात है कि इमर्जेंट है नेचर इसका, तो इसलिए ये ब्रॉड होता है। इधर का जो है वो नैरो इसलिए होता है क्योंकि इधर सबडक्शन जोन है, अंदर चला गया है, ऊपर से यहां पे माउंटेन खड़ा हो गया है, तो इसलिए। और ये माउंटेन जो है रिवर्स को अलाउ नहीं करता है इरोड करके सेडिमेंट ले जाके डेल्टा बनाने का। और ये जो यहाँ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो थोड़ा सबडक्टेड जोन है, तो वहां पे जो है डेल्टा बन नहीं पाता है। डेल्टा का फॉर्मेशन का याद करो आप लोग। समझ में आ रही बात है? इसलिए ये नैरो कोस्ट हो जाता है, ये ब्रॉड कोस्ट हो जाता है। दोनों ही रीजन में आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो जो कोस्टल रीजन होगा वो ब्रॉड होता चला जाएगा। यानी इधर मालाबार कोस्ट सबसे ब्रॉड होगा, उसके बाद ये कनाडा कोस्ट, कोंकण कोस्ट, और ऊपर सौराष्ट्र एंड कटियावाड़ कोस्ट। समझ में आ रही बात है? इधर भी जाओगे तो सबसे ब्रॉडेस्ट आपका होगा कोरोमंडल कोस्ट, फिर ऊपर जाओगे तो नॉर्दर्न सर्कार, फिर ऊपर जाओगे तो आपको उत्कल प्लेन। समझ में आ रही बात है? तो दोनों ही साइड में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ the breadth of the width of the coast increases। क्लियर है? फिर आप देखोगे रेनफॉल, यहां की फिजियोग्राफी, ये सब आप कंपैरिजन करोगे। जब भी कंपैरिजन की बात आएगी तो यू विल कंपेयर एवरीथिंग, केवल इसका लेंथ ब्रेथ ही नहीं, सारे चीज को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इस रीजन में जो रेनफॉल होती है वो हेवी रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। हेवी रेनफॉल बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ठीक। तो इसकी वजह से यहां जो है एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन होता है। समझ में आ रही है? 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल होता है। इधर जो होता है वो मोस्टली जो है 100 सेंटीमीटर के अराउंड रेनफॉल होता है, जिसमें जो सदर्न पार्ट है वहां विंटर रेनफॉल होता है और नॉर्दर्न पार्ट में समर रेनफॉल होता है ड्यू टू साइक्लोन्स। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? ये सारी चीजें हम रेनफॉल में ही बात करेंगे। इधर जो है कोस्ट जो है बिल्कुल नैरो है, और कोस्ट के पास जो इसका ये है क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है वो भी डीप है। तो इसकी वजह से यहां जो है नेचुरल पोर्ट्स बने हुए हैं। देयर आर सो मेनी नेचुरल पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, बट देयर इज नो नेचुरल पोर्ट्स। नेचुरल पोर्ट्स यहां नहीं बन पाते हैं। उसका कारण यह है कि जो यहां का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बहुत सैलो है, उसको डिग करना पड़ेगा आपको नेचुरल पोर्ट के लिए। पोर्ट कहां बनता है? जहां की पानी डीप हो, ताकि आ जाए यहां पे शिप आपका। यहां जो है शिप को ये रोकेगा आने से, जो यहां पे सेडिमेंटेशन है वो रोकेगा, तो इसलिए यहां पे नहीं आता है। तो इधर जो है सुंदर सुंदर बीचेज हैं, इधर जो है ज्यादा पोर्ट्स हैं, तो इसलिए ये कमर्शियलाइज्ड एरिया है। यहां पे जनरली मैनमेड पोर्ट्स बनाए गए हैं। डीप पोर्ट्स यहां भी हैं, पराद्वीप एक डीप पोर्ट है, लेकिन वो मैनमेड डीप पोर्ट है, ठीक। इधर जो है सारे पोर्ट्स आपके नेचुरल हैं, इसमें ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इधर जो है आप ज्यादातर देखोगे तो इरोजनल फीचर्स आपको ज्यादा मिलेंगे टिल मालाबार से पहले। मालाबार में डिपोजिशनल मिलने लगेगा, क्योंकि यहां पे मालाबार इमर्जेंट हो जाता है, ये सब सबमर्जेंट है। तो यहां ज्यादातर आपको इरोजनल फीचर्स मिलेंगे। द क्लिफ, नॉच, प्लेटफॉर्म, ये सब जो भी सबमरीन प्लेटफॉर्म जो भी हमने बात करी थी वो सारे आपको इधर मिलेंगे। समझ में आ रही बात है? और जो डिपोजिशनल कोस्टल फीचर जो हमने बताया था, सैंड बार, हुक, स्पीट, ये सब आपको इधर मिलेंगे। समझ में आ रही बात है? ये जो श्रीहरिकोटा हमारा है वो क्या है? सैंडबार है, एक तरह का सैंडबार आइलैंड है। इधर आपको बहुत सारे मिलेंगे सैंडबार्स, ऑफशोर सैंडबार्स, हुक, स्पीड, टोम्बोलो, सब जो है इधर मिलेंगे आपको। इधर जो है क्या मिलेगा आपको? क्लिफ, बे, ये सब मिलेंगे। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द इरोजनल, दिस इज डिपोजिशनल मोस्टली। क्लियर है? यहां का वेजिटेशन, यहां का कमर्शियल एक्टिविटीज, यहां देखोगे तो यहां का मेजर कमर्शियल एक्टिविटीज कल्टीवेशन है, राइस कल्टीवेशन होता है सारे डेल्टाज रीजन में।
गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, इस सब रीजन में राइस कल्टीवेशन होता है। यहां जो है कल्टीवेशन नहीं है, यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्योंकि यहां पोर्ट्स हैं, तो इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है यहां पे ज्यादातर। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू कोस्टल रीजन्स। लिख लोगे, रेनफॉल, वेजिटेशन, कमर्शियल एक्टिविटीज, सारी चीजें हो जाएगी। ब्रॉड विड्थ ऑफ द कोस्ट, पोर्ट्स फॉर्मेशन क्यों है, नहीं है, यहां डेल्टा फॉर्मेशन है, यहां एस्चुरी फॉर्मेशन है, ये भी एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंस। हियर इट इज डेल्टा फॉर्मेशन, हियर इट इज एस्चुरी। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? दिस इज द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया हो गया आपका, हिल्स माउंटेन्स हो गया आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हो गया, बेसिक फिजियोग्राफी आपकी हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और पढ़ेंगे, मैपिंग का एक क्लास में लास्ट में आपको लूंगा, ठीक है? उस मैपिंग में हम छोटे छोटे फीचर्स के बारे में भी दो दो लाइन जानेंगे, जैसे विंध्यास के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी सतपुड़ा के पार्ट है, महादेव हिल्स, ग्वालियर हिल्स, जितने लेके ऊपर तक, सब उसको हम छोटा छोटा एक बार देख लेंगे। टोटल माउंटेन्स ऑफ इंडिया, प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ इंडिया, एवरीथिंग छोटे छोटे हम उसमें देख लेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फिजियोग्राफी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा कल, मे बी आई विल टेक 2 क्लासेस। व्हाई? बिकॉज क्योंकि कल हमें क्लाइमेट पूरी तरह से खत्म कर देना है। क्लाइमेट में फर्स्ट क्लास में हम लोग मॉनसून को डिस्कस करेंगे, सारे मैकेनिज्म्स ऑफ द मॉनसून, प्री मॉनसून फेनोमेना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड प्री मॉनसून शावर, वो सारी चीजें। और जो सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे वो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, और वो जो कुछ ऐसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस होते हैं जो मॉनसून्स को इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि एल नीनो, ला नीना, सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स, इंडियन ओशन डाइपोल, मैडन जूलियन ओसिलेशंस। तो ये सारी चीजें को हम सेकंड क्लास में इसको करके, तो कल जो है आप लोग इसी टाइम पे आएगा 10:30 में, एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 क्लास 2-2, 2.5 घंटे का करके आपको खत्म हो जाए कल ये क्लाइमेट। और जो आपका सॉइल वाली पार्ट होगी, सॉइल, वेजिटेशन और नेचुरल डिजास्टर्स, ये पैनल पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो इसके बाद का जो रीजन है, क्योंकि उसमें हमें कुछ एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। मेन जो एक्सप्लेन करने की वो तो आपका रटने वाली चीजें हैं, एलुवियल सॉइल कैसे बना, क्या उसके केमिकल कंपोजिशन है, क्या उसके फिजिकल फीचर्स हैं, बस वैसे ही चीजें हैं। फॉर्मेशन के बारे में तो बहुत ज्यादा आपने पढ़ चुका है ऑलरेडी इसमें, तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें, वेजिटेशन, कहाँ कैसा वेजिटेशन पाया जाएगा, प्लस जो आपका हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट है, कौन रिवर कहां से निकलती है, कहां जाती है, उसके कौन कौन से ये हैं, दिस इज, समझ रहे हो ना? ये तो सब तो रटने वाला चीज है। कंपैरिजन बता देंगे हम सबका कि हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स के बीच क्या डिफरेंस है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीजें एक फॉर्म में आपको कंपैरिजन फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक? तो दैट इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्लासेस आपकी ज्योग्राफी की होगी कल के बाद, तो मे बी पैनल पे होगी, उसके बाद इन्वायरमेंट का क्लासेस हम शुरू कर देंगे फिजिकली, ठीक है? अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो, नेचुरल पोर्ट इधर नहीं बन सकता है, वो डीप पोर्ट है, लाइक नेचुरल पोर्ट, बट देयर इज मैनमेड इवेंट्स, वहां पे मैनमेड वर्क करके वहां इसको डीप पोर्ट बनाया गया, लाइक नेचुरल।